Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your reality 2 years from now, your life 2 years from now, your career, finance, your personal life. किस तरीके का जीवन आप जी रहे हैं 2 years from now, इस बारे में रीडिंग है. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your name. So pile 1 we have Page of Pentacles, pile 2 the Empress, pile 3 the Moon. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट भी आएगा इन कार्ड्स का पास है, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आईज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर नेम. अगर आपका नाम ADILMPSWZ से शुरू होता है तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका नाम CEGJORTVY से शुरू होता है तो पाइल 2 को पिक करना है. अगर आपका नाम BFHKNQUX से शुरू होता है तो आपने पाइल 3 को पिक करना है. ऑलराइट, सो ऐसे भी अपने नाम से भी आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो अभी आ रहे स्क्रीनशॉट इन कार्ड्स का पास से, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the Page of Pentacles, or you picked this pile because आपका नाम ADILMPSWZ से शुरू होता है. So let's get started with your reading. Pile number 1, your life 2 years from now. What kind of life you're living? What is happening in your life 2 years from now? What are you doing 2 years from now? Okay. We have 3 of Wands. I see you you're very courageous. You know what you're doing. You are very confident. You are getting respect and regard in society. You are getting money making opportunities. जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स थे वो वर्कआउट कर जाएंगे. जो आपके प्लान्स है लाइफ को लेकर, स्पेशली लॉन्ग टर्म प्लान्स, वो वर्कआउट करने वाले हैं. एंड लिटरली ये यहाँ पर लाइन है, अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस. तो आप जो नेक्स्ट 2 years में चॉइसेस बनाएंगे लाइफ की, वो बहुत अच्छी होगी. उसी के कारण 2 years from now you are getting that abundance. You are living an abundant life, and you are taking pride in the success of your labors. All right, you're very proud of yourself. You are the 8th person. You are the person जिसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है सोसाइटी में, जिसको आदर सम्मान, नेम फेम मिलता है. एंड you are living the best life because you are living a carefree life. You are gonna be childlike. All right, you know the maturity. Mature people are childlike. They are not serious. जो serious है ना लाइफ को लेकर, समझ जाओ, they are not mature. Mature people always will have fun. They are childlike. So you are living that childlike life because you are mature. You know what needs to be done and when it needs to be done. और जो आप choices create करेंगे लाइफ में नेक्स्ट 2 years में, उन्हीं के कारण ही 2 years from now आप एक abundant life जीते. ऐसा जीवन जहाँ पर तन मन धन जन का सुख है, जहाँ पर पैसे भी भरपूर हैं, जहाँ रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, जहाँ पर सम्मान मिलता है, सम्मानित जीवन जीते हैं, जहाँ पर हेल्थ भी बहुत अच्छे है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बोथ आर वेरी गुड. इट्स ऑल बिकॉज कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपके हैं, आप उनको अचीव कर पाते हैं, वो भी समय पर अचीव कर पाते हैं. सो यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ.
and you're enjoying the sweet fruit of your hard work 2 years from now. We also have the eight of swords card. It does shows that in the next 2 years there are going to be illusions as well, but due to your self confidence, all right, you will be able to let go of those illusions. मतलब आपको पता है कि आपको क्या करना है, यू नो योर प्लान और दिस इज़ माई प्लान, आई हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू माई प्लान जो मैंने बनाया है. बट सिचुएशंस लाइफ में ऐसी होंगी 2 years फ्रॉम नाउ जहाँ पर यू मे गेट अ शॉर्टकट, ऑल राइट, यू मे फाइंड अनदर रोड टू योर या एक और तरीका टू गेट टू योर डेस्टिनेशन. पर आप उन मिराज में नहीं आओगे, मतलब आप उन इल्यूजन्स में नहीं आओगे, और जो आपने प्लान डिसाइड करा, अपने लिए जो चीज़ें डिसाइड करी है, प्लान डिसाइड करा है, जो पाथ डिसाइड करा है, आप उसी पाथ पर चलेंगे और उस पाथ से जो है आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे. ऑलराइट, यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, यू विल नॉट बी अफ्रेड टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू योर प्लान. आप बिल्कुल डरेंगे नहीं, ऐसा यहाँ पर दिखता है. एंड यू विल बी लाइक 2 years फ्रॉम नाउ कि जो मेरी ज़िंदगी है वो मेरे करके है आज ऐसी. आप ये नहीं कहोगे इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया. लाइक नो, you are going to be very much satisfied with where you are 2 years from now, because you know कि ये मेरी वजह से है, किसी और की वजह से मेरा जीवन ऐसा नहीं है, मेरी ही वजह से ये जीवन मेरा ऐसे है. एंड आई लाइक इट. यू लव योर लाइफ. यूल बी लाइक कि मेरे को किसी से भी अपना लाइफ एक्सचेंज बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है. We have Aquarius sign. Oh my God. Aquarius here shows that you're going to live the eccentric life. All right. जो society कहती है कि ऐसा ऐसा जीवन हो वही best है, नहीं. You're like, you are going to be the inspiration for the youth. All right. Because you're going to live a life जो youth चाहेगा कि ऐसा जीवन best है. Like, Aquarius is the eccentric energy. So एक जो orthodox element है वो आपके अंदर नहीं होगा. You are going to be a very unorthodox person. You will have out of the box idea. और जो जीवन आप जिएंगे वो भी out of the box होगा. Again, राहु can be in the 10th house, जो कि ये शो करता है कि आपका एक बड़ा unconventional unorthodox करियर होगा और नेम फेम भी होगा. आपके परिवार में कोई भी उस करियर में नहीं होगा, पर आप उस करियर में होंगे. लेट्स से आपका पूरा परिवार गवर्नमेंट जॉब करता है, जो गवर्नमेंट में है, whereas you're going to be the first person who's going to set up the business. तो अपने परिवार से कुछ हटके आप काम करेंगे, कुछ अलग यूनिक आप काम करेंगे. एंड आई डू फील पाइल नंबर 1, यू गाइज वर द पीपल जिनको स्कूल वालों ने, टीचर्स ने कहा कि ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका दिमाग ही नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है. Just like Albert Einstein was criticized by his teachers early on in life, and later people realized that he is so eccentric, he is so intelligent. All right, so later people realize this thing. So same goes with you, pile number 1. आप भी एक eccentric person हैं, and you were traumatized in your childhood due to your teachers only. अगेन आपका मरकरी खराब होगा, मरकरी मार्स का कंजंक्शन होगा. मरकरी मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर. मरकरी राहु का कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करता है दैट यू कैन बिकम अ वेरी गुड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. यू कैन गेट लॉट ऑफ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, एंड इट ऑल्सो शोज कि योर स्पीच और कम्युनिकेशन इज़ वेरी पावरफुल. जो बात आप मुंह से बोल देते हैं उसका इम्पैक्ट दूसरे पर कुछ नेक्स्ट लेवल ही पड़ता है. आप दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं. यू हैव दिस एबिलिटी विद मरकरी राहु कॉम्बिनेशन. हाँ, अगर जैसे आपका जुपिटर 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, 1st हाउस में है, ये शो करता है. अगेन जुपिटर 6th हाउस में है, स्पेशली जुपिटर रेट्रोग्रेड ना हो और इन हाउसेज में हो, तो इट शोज कि आपको सही और गलत की बहुत अच्छी पहचान होगी. आप दूसरों को नेगेटिव वे में मैनिपुलेट नहीं करेंगे, आप उन्हें सही डायरेक्शन में सही दिशा देंगे. ऑल राइट. बट हाँ, अगर जुपिटर एक पर्सन का खराब हो जाता है, वीक हो जाता है, रेट्रोग्रेड हो जाता है, या अगेन खराब प्लेसमेंट से 3rd हाउस में रेट्रो हो गया जुपिटर, 7th 8th में हो गया रेट्रो जुपिटर, तो कहीं ना कहीं एक इंसान को सही गलत की पहचान इतना नहीं पता होती, या वो खुद भी कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल पड़ सकता है. बट उसे अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो वो भी ठीक रास्ते पर चलेगा. बट अगेन जिनका जुपिटर 1, 5, 9 हाउसेज में है या 6th हाउस में भी है और रेट्रो नहीं है, डायरेक्ट जुपिटर है, तो इट शोज की सही गलत की पहचान होगी. और फिर मरकरी राहु कंजंक्शन हो, या राहु 3rd हाउस का, राहु जेमिनी का हो, ऐसा इंसान दूसरों को मोटिवेट कर पाता है. मरकरी मार्स कंजंक्शन वाले लोग भी, मरकरी मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर वाले लोग भी दूसरों को मोटिवेट कर पाते हैं. पुनर्वासु नक्षत्र आपके चार्ट में हो सकता है, पाइल नंबर 1. अगेन पुनर्वासु जेमिनी में भी होता है और कैंसर साइन में भी स्पिल करता है.
तो इन साइंस में पुनर्वासु नक्षत्र होता है, तो पुनर्वासु पीपल आर ऑल्सो द पीपल, आपका सन मून राइजिंग आत्मा कारक प्लांट पुनर्वासु में होगा। यू आर ऑल्सो समवन जो दूसरों को मोटिवेट कर पाता है, दूसरों को सही दिशा दे पाता है, और कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं दूसरों को जिससे दूसरों की ज़िंदगी बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। अगेन पुष्या नक्षत्र कैंसर साइन में होता है, तो पुष्या में भी आपके कुछ प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं। उत्तर फल्गुनी नक्षत्र जो कि वर्गो में भी होता है और लियो में भी होता है, इनमें प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं। अगेन ये शो करता है दैट यू आर वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, यू कैन मोटिवेट अदर पीपल रियली वेल। उत्तराषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा पीपल, अगेन ये नक्षत्र कैप्रिकॉर्न में होता है और धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में। ये नक्षत्र भी दूसरों को मोटिवेट कर सकता है। अगेन आपके प्लैनेट्स इन साइंस एंड नक्षत्र में होंगे। वी हैव 11th हाउस, अगेन 11th हाउस में साइन ऑफ एक्वेरियस, क्योंकि 11th साइन जो है वो भी एक्वेरियस का होता है। 11th हाउस में भी एक्वेरियस का घोस्ट होता है, irrespective of whatever sign is placed in your 11th house. But 11th house here does shows me that you are going to be part of some big community. You will have your own community, है ना। You will have people in your network circle जो आप जैसा सोच विचार रखते होंगे, आप जैसी विचारधारा रखते होंगे। 11th house again shows me कि अगर आपका कोई एल्डर सिबलिंग है तो वो भी तरक्की करेंगे 2 years from now, उनकी ज़िंदगी में भी बेटरमेंट होगी, ये यहाँ पर दिखता है। ऑल राइट, एंड 11th हाउस represents gains, it represents your hopes, wishes, desires. तो आपकी hopes, wishes, desires 2 years from now definitely complete होगी। We have the earth element, oh my gosh, earth element, earth represents material wealth, alright, जैसे कि पैसे, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, मटीरियलिस्टिक मतलब चीज़ें है ना, वो आपके पास बहुत ज़्यादा होंगी 2 years फ्रॉम नाउ। जो आपकी होप्स विशेज़ डिज़ायर है, मटीरियलिस्टिक होप्स विशेज़ डिज़ायर है, वो कम ट्रू होगी 2 years फ्रॉम नाउ। एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर एसेंट्रिक नेचर, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़। यहाँ पर भी पेज ऑफ पेनिकल्स, चाहे आपने पिक करा है कार्ड या अगेन इस पाइल को आपने अपने नाम से पिक करा है, वट एवर इट इज़, पेज ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज मी दैट यू मे राइट अ बुक 2 years from now, you may publish a book 2 years from now. अगेन मरकरी केतु का कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करता है कि आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज होगा एंड यू आर गोना बी समवन जो उस सब्जेक्ट के थ्रू जो है हायर पोजिशंस पर जाते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, बुक पब्लिश कर सकते हैं, दूसरों किसी ना किसी तरीके के प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड आपका 2 years फ्रॉम नाउ ज़रूर होगा। मरकरी राहु वाला पर्सन ऐसा इंडिविजुअल होता है, मरकरी राहु कंजंक्ट या मरकरी राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है और मास्टर ऑफ नन है। उसको सब कुछ, सभी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा और उन चीज़ों के कारण भी उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस जीवन में मिल जाता है। ऑल राइट, सो दैट्स देयर। ऐसा इंडिविजुअल मार्केटिंग में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा सेल्समैन होता है। तो इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से पाइल नंबर 1 आप जीवन में सक्सेस पाते हैं 2 years फ्रॉम नाउ। यहाँ पर करियर के लिए हम स्पेसिफिक कार्ड पुल करते हैं। वी हैव ईगो कार्ड। ऑल राइट, सो व्हाट आई सी इज दैट 2 years फ्रॉम नाउ यू आर letting go of the ego. You're like, I can do anything and everything. कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. I feel that in the next 2 years आप यही देखें कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. I can do everything. I can इसमें भाई मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, भाई सोसाइटी क्या कहेगी, यू विल नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स. यू विल बी लाइक आई वांट टू फॉलो माई पैशन. सो व्हेन यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ ना, एट टाइम्स यू कैन बिकम अ बैड गर्ल और बैड बॉय. तो yes, it can happen that your family may not be supportive of your profession, may not be supportive of your dreams so much. So you can become the bad boy, the bad girl of the family. ऐसा हो सकता है कि आपके जो अगर जैसे आप किसी शादी वगैरह में जाते हैं, फैमिली फंक्शन में जाते हैं, तो पीपल इन योर फैमिली 2 years from now will be like कि पाइल नंबर 1 थे तो एक नॉर्मल इंसान, पहले बिल्कुल हमारे जैसे थे, बट 2 years फ्रॉम नाउ ये बिल्कुल कंप्लीटली बदल गए हैं. इन्होंने प्रोफेशन भी बहुत अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स पिक करा, चूज़ करा, और इनका सोच विचार भी बहुत अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल है. पहले तो ऐसे नहीं थे, अब पता नहीं एकदम से क्या होगा इनको. बट द रियलिटी इज यू वर ऑलवेज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. यू वर ऑलवेज दैट पर्सन जो बहुत अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स था, चीज़ों को एक डिफरेंट वे से देखता था, लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता था. एंड आप अपने आई डू फील दैट यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस इन द नेक्स्ट 2 years. तो जो छोटे छोटे काम भी होते हैं उस बिजनेस के, वो भी आप खुद करते हैं. 2
years from now you will be able to hire other people. Yeah, within 2 years you will be able to hire other people, but early on itself in the business you are going to be the one who's going to do the marketing, you are going to be the one who is treating the client, you are the one who is doing the back end work as well, you are the one who is planning everything out. But धीरे धीरे in the next 2 years you will also hire employees, you're also going to hire people. बट उससे पहले यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, और आपके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है. पाइल नंबर 1, यू आर समवन जो स्क्रैच से शुरू करेगा, जीरो से शुरू करेगा. अगेन केतु एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहा है इस रीडिंग में. केतु जो है, जैसे केतु सीए, लॉयर, एस्ट्रोलॉजर, टैटू आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, कोडर को रिप्रेजेंट करता है, कोडिंग से रिलेटेड काम या टेलरिंग से रिलेटेड काम, बुटीक बिजनेस, ऑलराइट, बैक एंड पर काम करना, बिहाइंड द सीन काम करना, रिसर्च वर्क से रिलेटेड काम करना, केमिस्ट्री से रिलेटेड काम करना, लैब्स में काम करना, ये सब केतु वाले काम है, केतु वाले प्रोफेशन है. पाइपलाइंस से रिलेटेड, पतली लंबी चीज़ों से डील करना अपने करियर में. जैसे एक पेंटर जो है हाथ में पेंट ब्रश पकड़ के पेंटिंग करता है, वो पेंट ब्रश भी लंबा पतला होता है. सो ये चीज़ें कुछ आप अपने करियर में करने वाले, केतु वाले चीज़ें करने वाले, हाईली स्किल्ड आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिस कारण आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है. एंड 2 years फ्रॉम नाउ यू आर दी बॉस, यू आर लिविंग अ लाइफ जहाँ पर यू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ. मे बी द नेक्स्ट 2 years कैन बी द टाइम जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं. 2 years फ्रॉम नाउ आपकी ज़िंदगी सेटल डाउन होना शुरू होती है, आपको रिलैक्सेशन का टाइम मिलता है, मी टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है. बट नेक्स्ट 2 years can be the years of complete hard work and breaking certain rules and regulations of your own self. या जो आपने कोई कुछ restrictions अपने ऊपर डाली हुई थी, वो उन restrictions को आप हटाते हैं और अपना लाइफ बनाते हैं, अपना करियर बनाते हैं. So this is what we are getting. About money, we have renewal card. Renewal here shows me कि maybe you are taking money from your parents, maybe you are taking money from your family, and you are going to rejuvenate, you are going to renew that money, you are going to multiply that money. पहले आप लेंगे उस पैसे को और या फिर you may even take loans, and 2 years from now you will be able to pay off those loans. 2 years from now जो आपने पैसे अपने पेरेंट्स से लिए थे, परिवार से लिए थे, वो भी आप वापस कर देते हैं और आपके पास मनी मल्टीप्लाई होकर आता है, आपका करियर, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर पाता है. सो इन योर हार्ट यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन. पाइल नंबर 1, you know it all. And then we have 10 of cups for your personal life, for your family life. All right, so 10 of cups is such a wonderful card. It represents a happy marriage, a happily ever after. All right, it represents emotional contentment. मतलब आपका जीवन बहुत अच्छा है. जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि with the 3 of wands itself, इस पे लिखा हुआ था abundant life. तो लिटरली यू आर लिविंग दैट अबंडेंट लाइफ. तो मतलब तन मन धन जन का सच में सुख है. जन यानी रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे हैं. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए रोमांटिक पार्टनर, you will get married to them, and 2 years from now you will have your own children, you will have your own home, and that home is going to be away from the city. It's going to be in the outskirts of some city. You will have beauty of nature there, you will have fresh air there, and it does shows me with the 10 of cups कि आपका खुद का रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ इम्प्रूव होता है. somehow your parents realizes that you are not like everyone, you have a different way of looking at things, and maybe some of you deals with anxiety, ADHD, like you are a special child. All right, you're a special person, and irrespective of all these things, you are able to achieve so much in life in the next 2 years, and your parents are really proud of you. They start to respect, your family start to give you respect and regard. Obviously जो person successful हो जाता है, financially बहुत अच्छा करने लगता है, उसको naturally respect regard society में मिलता है. तो वही चीज़ आपको मिल रही है 2 years from now. वो सब respect regard, परिवार में भी respect regard आपको मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे पैसे भी कमाते हैं, बहुत अच्छा करियर भी है, पर घर में उनकी कोई इज्जत नहीं होती. whereas I see कि आपके घर में भी इज्जत है. So that's wonderful. If you're single, you're ready to mingle, then yes, in the next 2 years you're going to find someone. All right, or maybe they are going to find you and you will get married to them, and 2 years from now you will have your own children, you will have pet dog or cat as well. So yeah, you will be able to trust your partner, you will be able to trust your family, you will be able to successfully raise children. मतलब wise way में आप raise करेंगे अपने बच्चों को. So this we see.
All right, for your physical and mental health, we have strength card. Such a wonderful card, such a powerful card it is, because it represents personal power. It represents the element of Mars here. क्योंकि Mars courage है, strength है, कुछ कर दिखाने की ताकत है. Mars बाहुबल है. मर्करी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन योर चार्ट. यानी मर्करी स्ट्रॉन्ग मतलब कि करियर वाइज स्ट्रॉन्ग है. आपकी खुद की फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए मर्करी खराब रिजल्ट दे सकता है. पाइल नंबर 1, एक अच्छा मर्करी करियर में बहुत अच्छा कर देगा पर हेल्थ को भी खराब कर देगा. तो करियर में आपके पास बुद्धि बल है, मर्करी बुद्धि बल है, लॉजिक है. लॉजिक भी आपके पास बहुत अच्छा है. मार्स 3rd, 6th या 10th हाउस में होगा जो आपको करेजस भी दिखाता है. या मार्स 2nd हाउस में हो सकता है 28 डिग्रीज पर, 27 डिग्रीज पर, 29 डिग्रीज पर, जो कि यही शो करता है ऑलमोस्ट 3rd हाउस में मार्स चला गया है. ऑलराइट, तो ऐसी प्लेसमेंट्स में होगा जो कि यही शो करता है कि आपके पास बाहुबल भी है और बुद्धि बल भी है. जब मर्करी मार्स कंजंक्ट होते हैं, कनेक्टेड हो, ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, 5-9 प्लेस द वे फ्रॉम ईच अदर हो, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करता है लाइफ में, क्योंकि बुद्धि बल भी है, बाहुबल भी है, कुछ कर दिखाने की ताकत है और दिमाग से चलते हैं ऐसे लोग. तो आप उनमें से हैं, पाइल नंबर 1. एंड इट डज शोज मी कि आपको किसी से डर नहीं लगता. आप बहुत निडर हैं, बहुत फियरलेस नज़र आ रहे हैं 2 years फ्रॉम नाउ, कि आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. And even you are physically very strong. 2 years, in the next 2 years you're also building your body. You're going to start to do gymming, you're going to start to do yoga, pilates. तो 2 years from now आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बहुत अच्छी है. ऐसा नहीं है कि किसी से खांसी जुकाम आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, आप थ्राइव करते हुए नज़र आ रहे हैं फिजिकली, मेंटली भी. कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें मन में चली जा रही है, या जो काम आपको 2 घंटे 4 घंटे बाद करना है, 1 दिन बाद करना है, तो बस उसी के बारे में ही सोचे जा रहे हो और पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करी जा रहे हैं अपना. ऐसा नहीं, मतलब एक कंट्रोल है मन पर भी, थॉट्स पर भी एक कंट्रोल नज़र आ रहा है आपका. तो 2 years फ्रॉम नाउ आप विद इन द नेक्स्ट 2 years आप अपने आप को बहुत बेटर कर लेते हैं, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को. एंड ये ऐसी नहीं बेटर हो रही है, और पुटिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स इट आई सी, क्योंकि मार्स का एलिमेंट है, मार्स एक्शन ओरिएंटेशन है, एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है मार्स. तो 3rd हाउस इज वेरी एक्टिव फॉर यू इन द नेक्स्ट 2 years. 3rd हाउस हमारे एफर्ट्स का है. मार्स 3rd हाउस में हो सकता है, मार्स मर्करी कंजंक्शन हो सकता है, क्योंकि मर्करी 3rd हाउस को नेचुरली रूल करता है ना. तो ये प्लेसमेंट्स होंगी. 3rd हाउस इज़ वेरी एक्टिव, आपके सेल्फ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. सो ये बहुत वंडरफुल बात है. And something more if we can get, pile number 1, about your reality 2 years from now. किस तरीके का जीवन आप जी रहे हैं, what kind of lifestyle you have. So we have the peace walker. It says peace, gentle and forward. तो आप forward movement कर रहे हैं, gently, gracefully कर रहे हैं, and you're peaceful. You don't, मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है जीवन से कि भाई जीवन ने मेरे साथ ऐसा करा, दुनिया ने मेरे साथ ऐसा करा. आपको शिकायतें नहीं हैं, बिकॉज यू नो वट एवर लाइफ इज टूडे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स, ऑल बिकॉज ऑफ द चॉइसेस आई हैव मेड. सो आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ, विद द चॉइसेस यू हैव मेड. तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी. देन वी हैव कॉस्मोस, क्रिएशन, स्पायरल. सो दिस सेलेस्टियल कार्ड हियर डज शोज मी दैट द कॉस्मोस, द यूनिवर्स इज विद यू. द यूनिवर्स इज विद यू वाइल यू आर क्रिएटिंग समथिंग. आप कोई चीज़ बिल्ड कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 years. ऐसा मैंने कहा, आप में से काफ़ी सारे लोग अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करेंगे, अपनी खुद की कंपनी बिल्ड करेंगे. ऑलराइट, खुद एक CEO बनेंगे. आप जॉब्स नहीं ढूंढेंगे, आप दूसरों को जॉब्स देने वालों में से होंगे. You're building something and universe is with you. Then we have the tree spirit. It says strength, growth, stability. Absolutely yes. यहाँ पर भी strength आ गया और यहाँ पर भी strength का कार्ड है ही. तो आप अपनी जड़ें जो है अच्छे से जो है बिछा लेंगे, यहाँ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 2 years में. आपको कोई ऐसे जल्दी से हिला नहीं पाएगा. कोई अगर तूफान आता भी है जीवन में तो यू विल बी फ्लेक्सिबल. जो पेड़ फ्लेक्सिबल नहीं है वो तूफान में टूट जाएगा, और जो फ्लेक्सिबल है वो लहराएगा ज़रूर पर टूटेगा नहीं. तो उसी तरह आप लहराएंगे ज़रूर, आपकी नैया जो है जीवन की डोलती ज़रूर है पर डूबती नहीं है. और वो इस वजह से नहीं डूबती क्योंकि यूनिवर्स इज़ विद यू. जिसका साथी हो भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान. तो आप सही रास्ते पर चलने वाले इंडिविजुअल हैं. एंड यू डू बिलीव कि अगर हम अच्छा करें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, और अगर कुछ बुरा हो भी गया, वी आर जस्ट पेइंग ऑफ आर कार्मिक डेट. तो आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. बहुत खुद भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है. अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, यू मे नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इट सो मच, बिकॉज यू आर लाइक कि वो जो हो गया वो हो गया. अब उसके बारे में क्या बार बार बात करके हम अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करें, हम अभी की अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ख़राब करें, है ना. तो योर फोकस इन द नेक्स्ट 2 years इज़ ऑल गोना बी अबाउट ग्रोइंग योर सेल्फ, ग्रोइंग योर बिजनेस, ग्रोइंग योर करियर, गेटिंग फाइनेंशियल
financial stability, getting financial strength, also gaining more information and knowledge, क्योंकि उसके through अगेन वी सी द पेज ऑफ पेनिकल्स जो कि बुक्स को रिप्रेजेंट करे, तो इन्फॉर्मेशन आप डेफिनेटली गेन करते हैं, अटेन करते हैं, बिकॉज यू फील इन्फॉर्मेशन नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड समथिंग. अगेन जुपिटर, मर्करी या वीनस में से कोई एक प्लांट आपका आत्मा कारक प्लांट होगा, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. जुपिटर, मर्करी या वीनस में से कोई एक प्लांट फर्स्ट, फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड होगा, जो कि ये शो करता है कि आप में बहुत नॉलेज है. ऑल राइट, सो that's there. Then last but not the least, यहाँ पर और क्या इंडिकेशन है? You have compassion card. Show compassion to yourself and others. Kindness matters. Absolutely yes. In this world जहाँ पर दूसरे लोग, अगर हम गिर जाए तो दूसरे लोग हम पर चढ़ के, हम पर कुचल के आगे निकल सकते हैं, उस जीवन, उस दुनिया में हम रहते हैं. पर उस दुनिया में आप बहुत कंपैशनेट स्टिल हैं. जैसे एक लोटस कीचड़ में उगता है. लोटस खुद तो बड़ा प्योर, खुद तो बड़ा सुंदर दिखता है, पर है तो कीचड़ में ही ना. तो चीची ऐसी दुनिया में भी, जो दुनिया ठीक नहीं है, मॉरली ग्रे है, उस दुनिया में भी आप खुद मॉरली ग्रे नहीं होते हैं, बुराई के प्रभाव दबाव में नहीं आते हैं, और प्यार फैलाने वाले इंडिविजुअल आप हैं. तो आप कहते होगे कि दुनिया या लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ते, तो हम क्यों अपनी अच्छाई छोड़ें. तो आप में इतना पॉजिटिविटी, इतना लव आपके अंदर है, और एक्सेप्टेंस भी है. इस पे लिखा है एम्ब्रेस एक्सेप्टेंस एंड लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस, इट ब्रिंग्स पीस. तो आप हर किसी का नेचर एक्सेप्ट कर लेंगे. अच्छा ये ऐसा है तो ओके, ये ऐसा ही है, ऑल राइट फाइन. यू गोना मेक पीस विद अदर्स, यू गोना एक्सेप्ट अदर पीपल, हेंस यू आर ऑल्सो गोना फाइंड अदर पीपल एक्सेप्टिंग यू, क्योंकि आप भी उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो दूसरे भी आपके फ्लॉज, आपकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं. देन वी हैव फेथ कार्ड. इट सेज कीप फेथ इन योर हार्ट, ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान. सो यू आर समवन जो अगर गलत चीज़ों का, या आप कह लीजिए आपने किसी चीज़ के प्रति एफर्ट करा था एंड यू डिडंट गॉट द रिजल्ट विच यू डिजर्व, बट आप अपना फेथ नहीं खोते उस रास्ते से, उस पाथ से. यू आर लाइक आई एम स्टिल गोना बी ऑन दिस पाथ एंड आई हैव फुल फेथ ऑन डिवाइन, ऑन यूनिवर्स. तो यूनिवर्स भी कहता है ये मेरा बच्चा मेरे भरोसे बैठा, तो मैं इसकी नैया तो पार करा के ही रहूँगा. तो यू आर गोना ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, द यूनिवर्स प्लान, आई सी. और आपका विश्वास टूटता नहीं है, ना अपने आप से, ना यूनिवर्स से, ना ईश्वर से टूटता नहीं है. एंड वी सी द विंग्स हेयर विच शोज कि आप सिर्फ चढ़ती कला में नहीं, आप उड़ती कला में हैं. आप बहुत फास्ट, क्विक एक प्रोग्रेस देखने वाले हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, अपने मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट में, अपने फिजिकल एस्पेक्ट में इन द नेक्स्ट 2 years. तो ऐसा यहाँ पर आपके लिए 2 years फ्रॉम नाउ लाइफ दिख रही है. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल नंबर 1. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो या 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 10th और 11th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ वी हैव मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में पुष्याश्लेषा. लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में हास्ता, चित्रा. और कैप्रिकॉर्न में भी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में शतभिषाख एंड पूर्वा, भद्रपदा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. All right, and yeah, that was pretty much it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do esoteric reading, nakshatra kunli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, I'm wearing citrine, amethyst, and the pink tiger. I can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 1. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the Empress card here, or you picked this pile because आपका नाम CEGJORTVY से शुरू होता है. So let's get started with your reading. Pile number 2. What kind of life you're living 2 years from now? Pile 2. Okay, so we have the 6 of cups. 6 of cups here shows that you have everything.
Six of Cups shows that you have you have a very good career, you have respect, regard in society, you have a lot of money, you have also love around you. All right, but you are still chasing something else. All right, but you have everything. बट एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ह्यूमनली नेचर है कि सब कुछ होते हुए भी एक इंसान जो है ये कहता है थोड़ा और, अगर थोड़े और पैसे आ जाएं, थोड़ा और मुझे कुछ मिल जाए, ये एक ह्यूमनली नेचर है. बट आई सी दैट यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग. मतलब 2 years from now when you're gonna sit and relax, you're gonna find peace, harmony, tranquility. You're gonna find that I have everything. I have money, I have a car, I have a home, I have people at home who are waiting for me and they love me. So you have like everything which you have desired, which you want. You have everything, you have achieved it. All right, but you are again someone pile number 2 जो ना you are always क्या कहें, हमेशा आप घोड़े पर सवार रहते हैं. pile number 2 वो गीत भी जो है कि घोड़े पे क्यों सवार है कोई, कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के दिल में अभी नकार है. तो कुछ ऐसा गीत जो है आई जस्ट ओके, आजकल गाने बहुत हो गए. सो आई जस्ट वांट टू से दैट हमेशा आप घोड़े पर सवार रहते हैं, कुछ ना कुछ भाई हम डिज़र्व करती हैं, कुछ ना कुछ हमें मिलना ही चाहिए लाइफ में. हम डिज़र्विंग पर्सन हैं और हम एफर्ट भी करने से घबराते नहीं, कतराते नहीं या लेज़ी नहीं है. तो हमेशा एफर्ट करते रहते हैं और कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हैं. और जब आप कुछ अचीव नहीं करते हो फील कि यार something is missing in my life, then you start to feel this way. Again, Satabhishak नक्षत्र Aquarius, सतभिषाक नक्षत्र जो Aquarius साइन में होता है, अश्विनी नक्षत्र जो कि एरीज साइन में होता है, ये हॉर्स रूल नक्षत्र हैं. तो इनमें आपके प्लांट्स ज़रूर प्लेस होंगे D1 या D9 या D10 दशांशा चार्ट में. दशांशा स्पेसिफिक चार्ट रिलेटेड टू करियर, इसमें ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, जो कि ये शो करता है कि आप हमेशा एक रेस में दौड़ते रहते हैं. अब ये रेस आपके मन में ही है. ऑल राइट, उस रेस में आप दौड़ते रहते हैं. लियो साइन जो जिसमें माघा नक्षत्र होता है उसमें भी आपके प्लांट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. ऑल राइट, अगेन माघा इज़ अ नक्षत्र विच इज़ अगेन अबाउट एन ओवर अचीवर. तो आप कुछ ना कुछ जीवन में अचीव ही करते चले जाते हैं. 2 years from now you have achieved a lot, बट आपके मन में अभी भी होगा, 2 years from now भी होगा कि अभी और भी चीज़ें मुझे पानी है. फुल एनर्जी, ओ माय गॉड. अब ये आपका सीक्रेट क्या है इतनी एनर्जी का, या आप हमेशा ही जो है कुछ ना कुछ अचीव ही क्यों करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आपके मन में रहता है कि अब मेरे को ये चाहिए. इट्स बिकॉज कि एक बचपन, एक फूल वाली एनर्जी आपके अंदर है, बचपना आपके अंदर है. जैसे बच्चे एक ही टॉय से खेल के बोर हो जाते हैं, उनको दूसरा टॉय अब चाहिए, है ना. तो सेम गोज विद यू. अब आप बड़े तो हो गए हो पर टॉयज़ अभी आपके हैं. जैसे एक गाड़ी आ गई तो एक और गाड़ी खरीद लेते हैं, एक प्लॉट खरीद लिया तो एक और प्लॉट भी खरीद लेते हैं. इट्स गोना बी लाइक दिस. और आपके लिए ना चलना जीवन की कहानी और रुकना मौत की निशानी है. लाइक गाना तो यही है, चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. इसमें भी लाल टोपी पहन रखी है. सो आई ओके, लेट मी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रीडिंग. सो फूल कार्ड में भी लाल टोपी है. फूल कार्ड में ये शो करता है दैट यू डोंट टेक थिंग्स सीरियसली, यू डोंट टेक पीपल्स BS seriously, or that person who just is in their own going in their own rhythm, going on their own pace. All right, अब दूसरों से आपका कोई competition नहीं है, रेस आपकी खुद की है. You are racing against your own self. You want to win better than before. मतलब पहले भी आप जीते हैं और आप चाहते हैं कि मैं और अच्छा जीतूँ अपने लाइफ में, और बेटर करूँ अपने लाइफ में. तो आपका रेस दूसरों से नहीं, अपने आप से ही है. और फूल कार्ड यही शो करता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मस्ती नहीं ख़त्म होनी चाहिए जीवन से. एक ये चीज़ भी, अगर किसी ने कुछ डांट दिया तो आपका क्या है, आप तो थोड़ी देर बाद ही करते हुए फिर मिल जाओगे. तो इट्स गोना बी लाइक दिस. आपका नेचर बहुत फन नज़र आ रहा है. यू आर बिकमिंग वेरी मैच्योर. पॉइंट नंबर 2, मैच्योर वो इंसान नहीं होता जो हमेशा सीरियस रहता है. मैच्योर वो इंसान होता है जो हमेशा ही हाँ करता रहता है, जो हमेशा जिसका चाइल्ड लाइक एनर्जी बना रहे, वो सच्चा मैच्योर इंसान है. जो आपको सीरियस दिखते हैं ना, इसका मतलब दे आर वेरी मैच्योर एंड दे डोंट हैव इनफ I would say wisdom in them. Wise people
are childlike. Literally, they are childlike. You are a wise person. That's why you have this fool element. That's why you have this Mercurius element. Mercury logic है, बुद्धि बल है Mercury. तो आप में बहुत बुद्धि है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लॉजिकल आप बहुत ज़्यादा हैं. और क्योंकि मरकरी बचपन को रिप्रेजेंट करता है, बचपन चाइल्ड लाइक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पूरा चाइल्ड लाइक एनर्जी भी आपके अंदर है. सिर्फ बचपन जैसे आप बचपना है, बट साथ में जैसे बच्चों में जो एनर्जी होती है वो वाली एनर्जी आपके अंदर. आप थकते नहीं हो. यू आर अनस्टॉपेबल बिकॉज आप थकते नहीं हो. आप चीज़ों को, जो नेगेटिव चीज़ें उनको रफा दफा करके आप फिर से जो है मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं. तो ये एक अनअपोलोजेटिकली हैप्पी रहना, मूव फॉरवर्ड करते रहना, यही आपका मंत्र है सक्सेस का. और नेक्स्ट 2 इसमें अगेन एम्प्रेस कार्ड, चाहे आपने पिक करा है नहीं पिक करा ये कार्ड, जैसे भी मतलब आपने इस पाइल को पिक करा है, पाइल नंबर 2, आई वांट टू से विद द एम्प्रेस एनर्जी, यू आर अट्रैक्टिंग सक्सेस इन लाइफ, यू आर नॉट चेजिंग इट. यहाँ फूल में भी दिस पर्सन इज नॉट रनिंग. इस 6 ऑफ कप्स वाले कार्ड में भी ये पर्सन बस खड़ा ही है, कोई दौड़ नहीं रहा, ये देख रहा है. और फूल में भी ये पर्सन दौड़ नहीं रहा, चल रहा है. तो इट डज शोज मी दैट यू आर नॉट रियली literally you're not running, but you're getting success in life because you're attracting success. All right, आप उस empress energy में जहाँ पर you don't chase, you just attract. All right, तो ये ऐसा जीवन आप जी रहे हैं 2 years from now. मज़ेदार जीवन जहाँ पर you are like you don't have lot of responsibilities on your shoulder. आप उन responsibilities को दूसरों में बांट देंगे. All right, you will have assistants, you will have employees under you, और आप उनको वो काम देते हैं. आप सिर्फ जो है विजन रखते हैं कि this is my vision, I want this in my life, this is my vision. All right, अब उस ये विजन है, ये प्लान है, काम कोई और करेगा, बट you will have the vision. आप उनसे वो काम कराएंगे और आप वेले रहेंगे, आप मज़े में रहेंगे. काम कोई और करेगा, बट आपका विजन होगा, आपका आइडिया होगा, उस आइडिया पर आप रखेंगे लोगों को, काम करेंगे और आप पैसे बनाएंगे. दैट्स हाउ यू आर वर्किंग. सो दैट्स ग्रेट. एंड वी हैव वर्गो. ओ माय गॉश, अभी हम मरकरी की बात कर रहे थे, बुद्धि बल की बात कर रहे थे. वर्गो पीपल, ये तो वर्गो पीपल, वर्गो आई थिंक एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है, बड़ा फेमस है, कि हम कहते हैं कि हम बहुत जगह सुनते हैं कि वर्गो पीपल आर द पीपल जो बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, वो बहुत डिटेल्ड वे में काम करते हैं, थोड़े सनकी भी हो जाते हैं क्योंकि इतना हाईली डिटेल्ड वर्क वो कर पाते हैं, है ना, परफेक्शन को चेज करते हैं. मतलब ये वर्गो के बारे में ऐसा सभी सोचते हैं, जो कि सच भी है, ऐसा कोई गलत नहीं है इसमें, सच भी है बात. बट वर्गो इज ऑल्सो अबाउट हाउ टू डील विद कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स. वर्गो पीपल वर्क्स द बेस्ट जब वो एक बैटल फील्ड में होते हैं. दे वर्क द बेस्ट देयर, क्योंकि उनका एंजाइटी वैसी एक पीक पर पहुंचा होता है. तो बैटल फील्ड इज लाइक अ प्ले ग्राउंड फॉर देम. ऑल राइट, पाइल नंबर 2. तो वैसे ही मरकरी, क्योंकि अगेन ये मरकरी का कार्ड है, फूल कार्ड भी, और वर्गो नेचुरली एक साइन है जो मरकरी रूल करता है. मरकरी मैं पहले भी आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, क्योंकि मरकरी जब ओवर स्टिमुलेटेड होता है तो यानी नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड हो जाएगा, एंजाइटी या ADHD टाइप चीज़ों से आपको डील करना पड़ेगा. ये बीमारियाँ इंटेलिजेंट लोगों की बीमारियाँ होती है, मूर्ख को ये बीमारी नहीं हो सकती. ये इंटेलिजेंट लोगों की बीमारी है. सो आपको भी है पाइल नंबर 2, आइदर यू हैव ADHD और यू हैव एंजाइटी, यू हैव दीज थिंग्स एंड यू आर अ परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ पर्सन. और यही परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ एनर्जी आपको एंजाइटी और ADHD में धकेलती चली जाती है. बट अगेन जब आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं आप जो नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन को भी पहले ही लाइक कहते हैं ना कि रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले वो युद्ध मनोभूमि में खेला जाता है. तो मन में आप पहले ही जैसे विजन बना लेते हैं कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है, अच्छा ये बुरी से बुरी ये सिचुएशन हो सकती है, ओके मैं इससे कैसे डील करूंगा या करूंगी, वो भी आप सोच के रखेंगे. आप वैसे वाले पर्सन है पाइल नंबर 2. नेगेटिव से नेगेटिव क्या ही हो सकता है, आप वो भी सिनेरियो सोच के रखते हैं, और उसमें मेरे को कैसे एक्ट करना है वो भी आपका सोचा समझा हुआ एक्शन, मतलब वो भी आपको पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. और अगर वो सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में वो नेगेटिव सिचुएशन मैनिफेस्ट हो जाती है तो यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन. तो इस वजह से जो आपकी नेगेटिव सिचुएशन का जो बैटल फील्ड है, यू विल समहाउ वर्क रियली वेल देयर.
नॉर्मल इंसान थक कर चूर हो जाएगा, पर आप नहीं थक कर चूर होंगे, आप उस प्रॉब्लम को हटा करेंगे। तो 2 years फ्रॉम नाउ यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर। आप दूसरे लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, अपना खुद का भी। बट वर्गो इज अबाउट अ डॉक्टर, अ लॉयर, एन एस्ट्रोलॉजर, जहाँ पर भी मतलब हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। अगर कोई बैंक में काम कर रहा है तो बैंक, अगर आप एक बैंक में काम कर रहे हो तो 2 years फ्रॉम नाउ यू में वर्क इन अगेन इन द बैंक ओनली, बट एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड करियर्स में आप जाएंगे। अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल भी हैं तो आप अगेन आपका काम कुछ ऐसा होगा कि अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो यू आर गोना बी द वन हु इज गोना फिक्स इट। आपका कुछ ऐसा जॉब होगा, काम होगा, है ना। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको लोग वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियोज में याद करते हैं कि अगर पाइल 2 होते या हमें पाइल 2 को कॉल करना चाहिए, क्योंकि वो हमें सही एडवाइस दे पाएंगे और हमें इस सिचुएशन से निकाल पाएंगे। लोगों को आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा विश्वास है। 2 years फ्रॉम नाउ आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो सभी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे करियर में भी आप जाएंगे। देन वी हैव मार्स। ओ माय गॉड, बुद्धि बल भी है तो बाहुबल भी है। मार्स कुछ कर दिखाने का एलिमेंट है, कुछ कर दिखाने की एनर्जी है। मेनी ऑफ यू कैन बी मांगलिक एज वेल। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 7th हाउस, 4th हाउस, 12th हाउस में मार्स होगा, 8th हाउस में मार्स होगा। वैसे 2nd और 8th हाउस में मार्स को पार्शल मांगलिक माना जाता है ऐसे कंडीशंस में। बाकी 1st हाउस, 7th हाउस, 4th हाउस, 12th हाउस वाले मार्स को हम पूरा मांगलिक मानते हैं। एंड आई फील मांगलिक होना इज़ द बेस्ट इन दिस डे एंड एज, बिकॉज कोई भी आपको बुद्धू नहीं बना सकता और आप दूसरों को डोमिनेट करोगे पर खुद कभी भी दूसरों से डोमिनेट नहीं होगे, दूसरों की बातों में नहीं आओगे। तो आज की दुनिया कुछ ऐसी है जहाँ पर मांगलिक होना इज़ अ ब्लेसिंग। ऐसा नहीं है इफ़ अ नॉन मांगलिक पर्सन मैरीज अ मांगलिक पर्सन तो नॉन मांगलिक पार्टनर इज गोना डाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ अ मिथ। Alright, so you are a Manglik person and that's great. That's why you're gonna thrive in life. क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, कुछ कर दिखाने की एनर्जी है और आप डरते नहीं हो प्रॉब्लम से, लोगों से, सिचुएशन से। आप सामना कर लेते हो उन प्रॉब्लम्स का, उन सिचुएशंस का, और लोग आपसे डर सकते हैं कि क्योंकि आपको कोई डरा नहीं सकता, या आपका कोई लूप होल ही नहीं है, या आपके पास कुछ खोने के लिए ही नहीं है। और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है, पाइल नंबर 2। इन्हीं पावर्स की वजह से 2 years फ्रॉम नाउ यू आर लिविंग अ लाइफ जो बेपरवाह बादशाह की है, और आप बेगमपुर के बादशाह है जहाँ कोई गम ही नहीं है, आपको किसी चीज़ का गम ही नहीं होता, और आप बेपरवाह बादशाह, नहीं कोई परवाह नहीं है, बड़े मस्त, बड़े मज़े से आप चलते हैं। 2 years फ्रॉम नाउ ऐसा जीवन आप जीते हैं। स्पेसिफिक कुछ हमें पता चले आपके करियर के बारे में, पाइल नंबर 2। So we have the wands card here. We have the 9 of wands card. So it does show, or yeah, it's a 9 of wands. So it does shows me कि आपके कुछ restrictions या कुछ limitations, self limiting belief systems थे, उनको let go कर दिया है। Especially career wise कि भाई इस career में मैं नहीं जाऊँगी, इस तरह काम मैंने नहीं करना, ये वाली चीज़ मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये अच्छी नहीं है, मेरे लायक नहीं है, डा 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 डा। आपने कुछ ऐसी limiting beliefs बनाए हुए थे। 2 years फ्रॉम नाउ वो लिमिटिंग बिलीव्स नहीं है, या इन द नेक्स्ट 2 years वो लिमिटिंग बिलीव्स, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको लगता था ये काम अगर मैं करूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, परिवार मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये वाली चीज़ें आपके मन में आती थी। बट यू आर गोना बी लाइक, इफ़ आई वॉन्ट टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क आई विल डू इट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट अदर्स आर गोना से। तो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस के रास्ते में आप बैड बॉय या बैड गर्ल भी बन जाएंगे इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, बट इवेंचुअली यू आर गोना बी द राइजिंग एम्प्रेस, यू आर गोना बी द राइजिंग किंग, यू आर गोना बी द एम्परर। तो शुरुआत जो हो आप अगेन अपने करियर की, वो ज़ीरो से अगेन आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ीरो रिस्पेक्ट, ज़ीरो मनी, ज़ीरो से मतलब आप स्क्रैच से शुरू करेंगे और धीरे धीरे फिर आप एम्प्लॉयज़ भी रख पाएंगे, आप एक बड़ी पोजीशन पर भी जाएंगे, बट करियर की शुरुआत जो है ज़ीरो से आप करेंगे। और कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आप कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो शायद आपको कभी करने नहीं थे या मन नहीं था, बट आप मन बना लेते हो कि अगर मेरे को वो चीज़ अचीव करनी है तो ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे भी हैं भारत में, तो देखिए भारतीय कुछ करके राजी नहीं, बट भारतीय जब फॉरेन लैंड चले जाते हैं तो टॉयलेट तक धो लेते हैं, उसके पैसे अच्छे मिल जाते हैं तो वहाँ पर टॉयलेट भी धो लेंगे। पर भारत में अगर कोई काम करना पड़ जाए तो फिर करते नहीं हैं,
क्योंकि बाहर ज़्यादा पैसे मिलते हैं. तो आई जस्ट वांट से, ये तो एक एग्जाम्पल था. और उसी तरह कोई भी काम को आप छोटा या बड़ा नहीं समझोगे. अब नेक्स्ट 2 years में वो काम भी आप करोगे जो आप कहते थे मैंने कभी नहीं करने, बट वो काम करके भी आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, या आप एक सक्सेस पर, एक अच्छे रिश्ते पर, एक अच्छे फाइनेंशियल प्रोग्रेस आप करना शुरू कर देते हैं. तो कुछ जो लिमिटिंग बिलीव्स थे आपके करियर वाइज वो हट जाते हैं. वी हैव द 2 of Swords कार्ड. 2 of Swords ये शो करता है जिन चीज़ों को लेकर आप करियर वाइज कन्फ्यूज्ड थे, अब कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्लैरिटी आ जाएगी. अगेन कोई लिमिटिंग बिलीव्स थे आप उनको कट पियर्स कर देते हैं. वी हैव द बटरफ्लाइज हेयर एज वेल विच शोज मी करियर वाइज ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर 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 आएगा. थोड़ा आउट ऑफ द कंफर्ट जोन तो आप जाएंगे ही, ऑल राइट, और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे इन द नेक्स्ट 2 years. ये यहाँ पर दिख रहा है. करियर वाइज आई डू फील मैनी ऑफ यूर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, मैनी ऑफ यूर गोना स्टार्ट योर करियर फ्रॉम द स्क्रैच. किसी और नई फील्ड में आप एंटर करेंगे और ज़ीरो से शुरू होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. About the finances we have the Pentacles energy, 10 of Pentacles energy, जो कि बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल कार्ड है, जो कि शो करता है आपके पास बहुत सारा मनी है. एंड योर पेरेंट्स और लव्ड वंस आर गोना बी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट 2 years, इन द नेक्स्ट 2 years जो आपने करा. एंड 2 years फ्रॉम नाउ योर पेरेंट्स और लव वंस आर गोना बी वेरी प्राउड ऑफ यू. हाँ, जो शुरुआत हो, ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स या आपके लव वंस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना करें. दे मे से दैट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, बट दे डोंट रियलाइज, दे डोंट अंडरस्टैंड कि जो आपका करियर है वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स, बहुत अनकन्वेंशनल, एंड यू नो बेटर देन देम. दूसरों को लगता है आपसे बड़े जो हैं उम्र में, उनको लगता है कि उनको आपसे ज़्यादा पता है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है. बट द रियलिटी इज़ कि अगर कोई इंसान हमसे जल्दी पैदा हुआ है, 10 साल 20 साल बड़ा है, यानी वो हमसे जल्दी पैदा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सब पता है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाइज है. एवरी अडल्ट इज़ नॉट वाइज. और शायद ये लेसन आपने बचपन में ही सीख लिया हो अपने टीचर्स, अपने प्रोफेसर्स को देखने के बाद, कि इवन दो दे आर ओल्डर देन अस बट स्टिल दे आर नॉट मैच्योर इनफ, स्टिल दे आर मेकिंग मिस्टेक्स एंड दे आर लर्निंग, दे आर स्टिल ऑन द लर्निंग फेज. तो एक अडल्ट भी जो है या एल्डरली पर्सन भी जीवन को सीख ही रहा होता है. ऑलराइट, तो हर एल्डर सही भी नहीं होता. तो यू विल रियलाइज दिस थिंग कि शायद मेरे पेरेंट्स भी या मेरे लव वंस भी, दे आर नॉट रियली अडल्ट, दे आर अडल्ट बट दे डोंट हैव सो मच ऑफ विजडम. सो पाइल नंबर 2, यू गाइज आर द वाइज वन. आप में बुद्धि बल बहुत है, आपको समझ आती है बातें. ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि जो 20 years पहले आपसे पैदा हो गया वो ज़्यादा ही मैच्योर और वाइज है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. बड़े लोग भी गलतियाँ करते हैं. You will realize it. But I see financially you're going to grow really very much 2 years from now. You have a lot of money. क्योंकि 10 of Pentacles सब सुख सुविधाओं को represent करता है कि आपका अपना घर है, आपका अपनी गाड़ी है, आपके पास हर वो सुख सुविधाएं हैं जो आप imagine करते हैं, जो आप visualize करते हैं, वो हर सुख सुविधा आपके पास है. Then we have the 10 of Wands. 10 of Wands here shows me your personal life. 10 of Wands यही show करता है कि 2 years from now you just feel that I am alone and I have to do things on my own. No one is going to help me out. Everyone, they are respecting me because now I have money. But to be honest, I have no one with me. जिनका मरकरी केतु कंजंक्शन होता है, मरकरी केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होते हैं, ऐसे लोगों के दुनिया में तो बहुत दोस्त होंगे, बट जब वो अकेले होंगे तो उनका कोई दोस्त नहीं होगा. मतलब बाहर ऐसे आपको लगेगा कि इस इंसान के तो बहुत सारे दोस्त हैं. मरकरी केतु कॉम्बिनेशन वाले लोग जो होते हैं, कुछ ऐसे होता है कि सभी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखेंगे, फ्रेंडशिप रखेंगे, बट रियलिटी में ऐसे लोगों का कोई दोस्त होता नहीं है, नहीं होता. हमें लगता है कि मरकरी केतु के बहुत सारे दोस्त हैं, बट इन रियलिटी उनका कोई सच में बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में भी मरकरी केतु कंजंक्शन है. मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करता है दैट यू विल हैव डीप नॉलेज अबाउट सम सब्जेक्ट एंड यू आर गोना बी अ वेरी गुड राइटर. यू कैन राइट लॉन्ग ईमेल्स, लॉन्ग टेक्स्ट मैसेजेस, लॉन्ग पैराग्राफ्स एक्सेट्रा. यू मे इवन पब्लिश अ बुक 2 years फ्रॉम नाउ. यू गोना बी अ वेरी गुड राइटर. तो ये चीज़ होगा. बट इन रियलिटी मतलब देखने में सोशल मीडिया पर या you may have a lot of friends but in reality you also know pile 2 you have no one. तो कहीं ना कहीं ये आपको फील ऐसा होता है. बट गाइडेंस ये है कि, और आई शुड से इन्फॉर्मेशन ये है टैरो से, यू विल हैव समवन इन योर लाइफ 2 years फ्रॉम नाउ एंड दे आर नॉट योर फ्रेंड, दे आर एक्चुअली योर लाइफ पार्टनर. योर लाइफ पार्टनर इज गोना बी योर बेस्ट फ्रेंड. So in the next 2 years, you're going to find someone, or maybe this person is going to find you out, and you guys are going to get in a romantic relationship and eventually will get married and will become a family, will become family to each other.
all right, will support each other no matter what, will love each other for no matter what, will accept each other's flaws no matter what, will share each other's burdens in life. सुख दुख के साथ ही होंगे. तो ऐसे 2 years में, next 2 years में, if you are someone who is not married, who is single, ready to mingle, then definitely 10 days from now, or 10 weeks from now, or 10 months from now, you're going to find someone, yeah, they're going to find you, and एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में. अगेन आपके चार्ट में वीनस मार्स का कंजंक्शन है. वीनस मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर. ऐसी प्लेसमेंट होगी जो कि यही शो करता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं इस लाइफ टाइम के, वो आपके पास्ट लाइफ में भी आपके लाइफ पार्टनर थे. एंड अगेन इन दिस लाइफ टाइम यू गाइज आर गोना मीट ईच अदर एंड विल गेट मैरिड एंड विल स्टे टुगेदर अगेन. तो ऐसे पास्ट लाइफ के पर्सन से मैरिज होगी. इफ़ यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, or I should say, if you are already married, if you are already in a romantic relationship, then you are going to get married and even will plan for a child 2 years from now. या फिर in the next 10 weeks you guys are going to conceive, and 2 years from now your child is 2 years old, 1.5 year old. All right, so that's there. And something more if we can get from the tarot about your health, physical and mental health, pile number 2. Okay, so we have the swords energy. 10 of swords का कार्ड है ये. तो अगेन यहाँ पर 10 of wands भी है, 10 of swords भी है. So it does shows me that with the swords element, yeah, same thing जो अभी हम बात कर रहे थे, that you don't have a lot of people in your life. You do have love, you have a life partner, but still you don't have friends. And why you don't have friends? Because you are a successful person. Pile number 2, successful लोगों के दोस्त नहीं होते. सच्चाई है ये. This is the truth. इसको हम शुगर कोट नहीं कर सकते, ये सच्चाई की बात है. कहने को कह दोगे कि हाँ मेरे 4 दोस्त है, 5 दोस्त है, ये 10 दोस्त है, पर आपको भी अंदर से पता है, पाइल नंबर 2, अभी भी पता है कि आपका सच में कोई दोस्त नहीं है. और इसको हम ना शुगर कोट कर सकते, जीवन की सच्चाई है आपके लिए. और ऐसा इस वजह से है क्योंकि आपको एक दोस्त की कमी ना तब महसूस होती है, पाइल नंबर 2, जब आपके पास कोई पर्सन है नहीं जिसके साथ आप बैठ कर खाएँ या कहीं घूमने फिरने जाएं. सैटरडे संडे अपने फ्री टाइम में आप उसके साथ मॉल घूमें, या मतलब ऐसे समय पर आपको एक दोस्त की याद आती है. अदरवाइज यू आर बिजी इन योर लाइफ. यू आर लाइक, I have this work, I have that work, I have my yoga class, I have to go to the gym. Like you're always doing something or the other. आपको एक दोस्त की कमी तभी फील होती है जब हफ्ते में मतलब 4 घंटे 5 घंटे आपको दोस्त की कमी फील होती है, अदरवाइज नहीं फील होती. That's you. Alright, because you're already surrounded with lot of people somehow, or lot of work somehow, और अपनी खुद की हॉबीज़, अपनी खुद की क्रिएटिव चीज़ों में आप बिजी रहते हैं और अपने फैमिली में आप बिजी रहते हैं. तो आपको दोस्त की कमी हफ्ते में 4-5 घंटे से ज़्यादा सताती ही नहीं है. पर जब वो दोस्त की कमी सताती है तो आपको दुख ज़रूर होता है, ये डेफिनेटली दिख रहा है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है 2 years फ्रॉम नाउ आपके फिजिकल मेंटल हेल्थ जो है बेटर होना शुरू होता है, कहीं ना कहीं हीलिंग आनी शुरू होती है. इन द नेक्स्ट 2 years स्टिल यू हैव सम ग्रजेस, यू आर होल्डिंग सम ग्रजेस अगेंस्ट पीपल. तो स्टिल एक हीलिंग आपको लग जाती है, हीलिंग का समय आपको चाहिए होता है. तो इन द 2 years फ्रॉम नाउ यू आर गोना नोटिस दैट यू आर गोना बी कम्प्लीटली हील्ड, यू आर गोना बी अ ब्रांड न्यू पर्सन. बट हाँ, कई ऐसी सिचुएशंस आपके जीवन में हुई है, बचपन से ही हुई है. टीचर्स जो थे स्कूल के, उन्होंने आपके साथ ऐसा करा है, मतलब दे हैव रियली दे टुक अवे योर कॉन्फिडेंस. ये कह के कि पालतू तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे जीवन में, इतने नालायक हैं, इतने पुअर एंड दिस दैट. यू नो व्हाट, लाइक लेट मी टेल यू समथिंग. येस्टरडे आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड आई डोंट नो हाउ आई गॉट टू ए I saw a reel. I don't know कैसे मेरे को इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ले गया उस रील पर, एंड माई चाइल्डहुड ट्रॉमा it just got activated. All right, so I saw that reel. In that reel एक लड़की एक्टिंग कर रही थी टीचर की, कि टीचर ऐसे कह रही है कि एक बच्चे को कि तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं आता, मार्क्स बताओ तुम्हारे कितने आए हैं. वो बच्चा जो है
बोल भी नहीं रहा क्योंकि उसके मार्क्स बहुत ही कम आए, वो फेल हो गया बेसिकली। टीचर उससे जोर बुलवा रही है पूरी क्लास के सामने कि देखो इसके इतने कम मार्क्स आए हैं, इसको शर्म ही नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। एंड आई जस्ट लाइक माई ओन ट्रॉमा, माई ओन वूंड ओपनड अप। आई मीन आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई फील दैट, बट दैट जस्ट उसने फिर से मेरे को जो है मेरे वूंड को उधेड़ दिया फिर से। I remember in my 7th standard my English teacher she said the same things जो उस रील में थी कि देखो अक्षता के कितने गंदे ख़राब नंबर आए हैं, वो पास भी नहीं हुई है। And I was like I was almost about to cry and I cried after that of course and I went home. मैंने ये कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे को घर जाना है। I went home. It was like a very traumatic thing. I was not a good student, like I was even below average kind of student till 9th क्योंकि मैंने 9th क्लास तक तो एजुकेशन को सीरियसली लिया ही नहीं। एंड माई टीचर्स वर लाइक शी कांट डू एनी थिंग एंड ऑल। तो एक वूंड जो है वो ओपन हो गया है ना। अब उस बात को देखिए कितना समय बीत गया है ना। अब तो हील हो जाना चाहिए था, बट आज भी कोई ऐसी बात हम सुन लें तो वो ट्रिगर हो जाता है। ऑलराइट, सो यू कैन से दैट वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ होती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है पाइल नंबर 2 कि ट्रिगर होता है आपको भी। आपके बहुत सारे इमोशनल वूंड्स हैं जो लोगों ने दिए हैं कहीं ना कहीं, जो आपकी शुरू की। अगेन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम इस चीज़ को समझें तो ये ऐसा है कि आपकी जो शुरुआत हुई है ना लाइफ की पाइल नंबर 2, वो 7.5 के साथ हुई है। लाइक आपका मून के साथ कंजंक्ट सैटर्न होगा, या मून के पीछे वाले घर में या मून के आगे वाले घर में सैटर्न होगा। ऑलराइट, तो आप 7.5 में पैदा हुए हैं, तो जो अर्ली फेज होगा लाइफ को खराब होगा। बट ये शो करता है अगर कोई पर्सन 7.5 में पैदा होता है फिर उसकी फिर से 7.5 आती है, 3 7.5 आती है हमारी लाइफ में। एक तो 3 पहली वाली 7.5 हो सकता है हमारे पेरेंट्स में पड़े, दूसरी वाली 7.5 में हम मैच्योर होते हैं, मतलब 20s या 30s में होते, तो उसमें वो हम पे पड़ती है 7.5। तीसरी 7.5 हमारे बच्चों पर पड़ती है क्योंकि हम बुजुर्ग हो जाते हैं तब तक। ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही 7.5 आती है हमारी एक पर्सन की ज़िंदगी में। तो आई वॉज सेइंग कि आप ऐसे 7.5 में पैदा हुए होगे, और जो पर्सन 7.5 में पैदा होता है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब उसके ऊपर दूसरी 7.5 आती है जो उसी के ऊपर पड़नी है, वो 7.5 आती है, तो उसको कोई खास फिर फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर एक्चुअली बॉर्न इन द बैटल फील्ड। तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर उनके जीवन में मुश्किलें आए भी उसके बाद, है ना, क्योंकि उससे इम्यून हो चुके हैं। और अगर जैसे मून लेट से केतु वाले नक्षत्र में, आपका मून अगर एरी साइन में अश्विनी नक्षत्र का मून है, या आपका मून माघा नक्षत्र का है, या आपका मून जो है मूला नक्षत्र का, ये सब केतु रूल्ड नक्षत्र हैं जो कि फायर साइंस में होता है, एरीज, लियो और सेजिटेरियस साइंस में होता है ना, इनमें आपका मून हो सकता है। तो केतु की दशा में मतलब यू स्टार्टेड योर लाइफ, तो यही शो होता है कि जो अर्ली लाइफ होगी वो बहुत मुश्किल होगी, पर वो आपको बहुत सारे ट्रॉमास देगी, और आप कहीं ना कहीं अपने बहुत बड़े वाले कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरे करोगे। और कैसे पूरे करोगे? अपने टीचर्स, अपने क्लासमेट्स के थ्रू, क्योंकि वो लोग आपको कोसेंगे, वो लोग लिटरली आपको कोसेंगे, आपको नोचेंगे, आपका बुरा हाल करेंगे। बट दैट एक्चुअली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। वैसे तो स्ट्रॉन्ग क्या ही कहें, बट आपको लाइफ के लिए रेडी कर देता है कि लाइफ में फिर कोई भी बुरी चीज़ होगी ना, यू विल बी लाइक कि शुक्र है मैं बच्चा नहीं हूँ, और शुक्र है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ऑलरेडी इन चीज़ों से डील कर चुका, तो आई नो हाउ टू डील विद इट। सो बड़े होकर यू विल लिव अ चिल लाइफ, बट अर्ली लाइफ विल बी ट्रोमैटिक, और वो ट्रॉमा को हील करने में आपको साल लग जाएंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर पाइल नंबर 2 कि वो ट्रॉमा से आप फिर भी मतलब वो हो जाता है, वूंड जो है फिर से जैसे जो है उसको वो हील हो रहा था, पट्टी लगाई हुई थी, पट्टी उधेड़ दी आपने फिर से इन द नेक्स्ट 2 years कुछ चीज़ों के कारण, ऐसे कुछ ट्रिगर हुए। और 2 years फ्रॉम नाउ आप अपने आप को जो है बेटर कर लेंगे दिखता है, बट नेक्स्ट 2 years कैन बी द ईयर्स जहाँ पर आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज आपके फिर से सामने आ जाते हैं, और वो थोड़ा आपको इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। बट आप नेक्स्ट 2 years में ये सीखेंगे कि हाउ टू कम आउट ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज अगेन 10 of wands है और 10 of swords भी है।
तो ये एंडिंग ऑफ अ बैड साइकिल को रिप्रेजेंट करता है. तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में यही दिख रहा है कि आप अपनी साढ़े सती में भी और राइट नाउ रनिंग योर साढ़े सती, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप जो अपनी साढ़े सती कंप्लीट कर लेंगे, या फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स में समहाउ आई सी कि आप अपने जो वुंड्स थे उनको कंप्लीटली हील कर लेंगे. यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एंड यू विल हील योर सेल्फ कंप्लीटली. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. All right, so let's also get some more information. Pile number 2 about your life कि आप कैसी जीवन जी रहे 2 years from now. So what you are getting. So we have gratitude, pink rose. Again, such a soft card it is, because it shows कि आप बहुत शुक्रिया अदा करते हैं यूनिवर्स का, ईश्वर का, कि मेरी बहुत अच्छे जीवन है. आप हर जगह शुक्रिया अदा करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करता है कि खाना खाया है तो ये रोटी जो है जिसने बनाई उसका भी शुक्रिया, जिसने इस अनाज को ग्रो करा है फार्मर उसका भी शुक्रिया. तो आप बहुत ग्रैटिट्यूड शो करेंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स में. छोटी से छोटी चीज़ कोई पर्सन आपके लिए करता है तो यू विल बी वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल फॉर देम. Then we have the happiness card. So this card here shows कि happy portion, happiness portion आपके पास है. Again you will know कि how to make yourself happy. मतलब हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पता होनी चाहिए जीवन में कि हमें कौन सी चीज़ें खुश करती है, तो वो चीज़ें हमें करनी चाहिए. तो खुशी का फॉर्मूला, खुशी का पोर्शन आपको ज़रूर मिल जाएगा. कौन सी चीज़ें मेरे को खुश करती है आपको पता लग जाएगा, और आप वो चीज़ें फ्रीक्वेंटली अपने जीवन में करेंगे. अगर आपको पेंटिंग गाना गाकर खुशी मिलती है तो आप वो पेंटिंग करेंगे, गाना गाएंगे. ऑलराइट, तो जो चीज़ आपको खुशी देती है आप उस पर भी समय बिताएंगे ऐसी. तो सेल्फ केयर भी आप करने वाले हैं. देन वी हैव होप. यू आर गोना बी वेरी होपफुल. आप होपलेस नहीं होंगे 2 ईयर्स में. आप ये नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स आप बहुत होपफुल रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, खुश रहेंगे. सो दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. समथिंग मोर, we have the wisdom card. It says future truth. So this card here shows that you are very wise. तो वो तो शुरू में ही पता लग गया है that you are an old soul, pile number 2, and आप एक wise person है, तभी आप एक खुशनुमा person है. आप अपना inner child alive रखते हैं, और आपको पता है कि सामने वाला पर्सन कोई बात करेगा ना, आपको पता होगा इसकी बात जाकर रुकेगी कहाँ और ये कहना क्या चाहता है. आपको पहले ही पता लग जाता है उसकी पहली लाइन में. तो आप इतने वाइज भी हैं, और कहीं ना कहीं एट टाइम्स इम्पेशेंट भी हो जाते हैं, बिकॉज यू नो ये पर्सन क्या बात करने वाला है, किस बात पे पहुंचने वाला है, एंड ऑल. यू आर वेरी वाइज. आप अपने आप को समझदार समझते भी और आप हैं भी. फाइल नंबर 2, वाइज. ऑलराइट, वी हैव वाटर कार्ड. इट से सरेंडर. तो ये भी शो करता है विद द वाटर एनर्जी कि abundance is flowing in your life and you have surrendered to the divine. जो भी divine मेरे को ऑफर करना चाहता है, I'm ready to take that. We have heart card. It says love. Pile number 2, definitely you will find the love of your life in the next 2 years. Literally you are going to find love in your life, or love will find you, I should say. Pile 2. Then we have yin yang. It says balance. So you're going to find someone जो शायद आपसे बिल्कुल opposite हो. If you are yin, they are going to be yang. If you are quite practical, they are going to be emotional. If you are someone जिसको savory food पसंद है, then your partner is going to be someone जिसको sweet tooth होगा. मतलब आप ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के. एक पर्सन मैरिज में स्ट्रीट स्मार्ट, क्विक लर्नर, इंटेलिजेंट, विटी होगा. दूसरा पर्सन मैरिज में वाइज होगा, हाई मॉरल वैल्यूज होगा. तो विजडम और इंटेलिजेंस 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना. तो ऐसे एक जुपिटेरियन पर्सन है, एक मर्क्यूरियस पर्सन है. ऐसे आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. मर्करी लॉजिक है, इंटेलिजेंस है, क्विक स्ट्रीट स्मार्ट क्विक लर्नर है. जुपिटर वेरस हाई मॉरल वैल्यूज विजडम को रिप्रेजेंट करता है. तो आप दोनों मर्करी और जुपिटर वाले पर्सन होंगे. आप जुपिटर वाले पर्सन होंगे, आपके स्पाउस मर्करी वाले पर्सन होंगे, या फिर आप या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है इसका. देन वी हैव द पावर लाइन्स. इट सेज एनर्जी. यू आर गोना नोटिस दैट यू विल हैव अ टीम. एक टीम होगा आपका पूरा जो आपको एनर्जेटिक फील कराता है. ऑलराइट, एक टीम इन द सेंस उस टीम में आपके स्पाउस भी होंगे, उस टीम में आपके कुछ और लोग भी होंगे, जैसे योर मैनेजर, योर असिस्टेंट, और वो आपको चीयर अप करते रहते हैं और आप भी उनको चीयर अप करते रहते हैं. एक ऐसा सर्किट बन गया है, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता. ऑलराइट, सो द पावर लाइन डेफिनेटली शोज कि आप एक 2 years फ्रॉम नाउ एक ऐसी जीवन जी रहे जहाँ पर आपने जो है अपने जीवन में आई वुड से कि अपनी लाइफ में आपने एक बना लिया है सिस्टम. ऑल राइट, जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम बिजनेस को अभी बढ़ा रहे हैं, नए एरियाज ओपन कर रहे हैं, नई चीज़ें ओपन कर रहे हैं, एक पूरा मतलब अपना सिस्टम बना रहे हैं. बट जब वो सिस्टम बन जाता है
है ना, जब सब कुछ सेट हो जाता है तो लाइफ ऐसे हमें लगता है कि सेट हो गई है, ईजी हो गई है ना. तो 2 years फ्रॉम नाउ वो सिस्टम सारा सेट हो चुका है. तो एक करियर वाइज लाइफ में एक ईजीनेस आएगी आपके, है ना. हर समय आप बिजी 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 नहीं रहोगे. 2 years फ्रॉम नाउ एक ईज जीवन में आएगी. दैट्स वाई 2 years फ्रॉम नाउ यू आर द एम्प्रेस. यू हैव दिस एम्प्रेस काइंड ऑफ एनर्जी. यानी आपकी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट करेगी. आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा. आप ऑलरेडी एक सिस्टम तैयार कर चुके होगे तब तक. So this is what we are getting. Last but not the least, we have the simplicity card. Embrace simplicity and let go of excess. Less is more. Absolutely yes. With this card, I show with this card we see 2 years from now आप लाइफ को सिंप्लीफाई कर लेते हो. मुश्किलों से नहीं डील करोगे 2 years from now. बहुत सिंप्लीफाई कर चुके होगे लाइफ को, और इनफैक्ट एक सिंपल लाइफ जीना चाहोगे, लेस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीना चाहोगे, कम चीज़ें चाहोगे. आपका घर जो होगा ना 2 years from now बहुत मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया होगा आपने. ऑलराइट. और काम की चीज़ें उस घर में होगी, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होगी. जो चीज़ें यूज़ नहीं करोगे वो दे दोगे, उसे अपने पास नहीं रखोगे. बिकॉज यू विल डेफिनेटली फील दिस वे कि हमारा डीक्लटर्ड होना चाहिए स्पेस, ऐसा भरा भरा नहीं होना चाहिए. बिकॉज दैट फील्स लाइक अ ब्लॉकेज टू यू. तो अगेन एरीज साइन जो है 4th हाउस में हो सकता है आपके चार्ट में. पाइल नंबर 2. अगेन यू कैन बी ए केप्रिकॉन राइजिंग पर्सन. तो केप्रिकॉन राइजिंग जब पर्सन होता है, नवांशा में केप्रिकॉन राइजिंग हो सकता है, आपका बर्थ चार्ट में केप्रिकॉन राइजिंग हो सकता है पाइल नंबर 2, जो कि यही शो करता है कि 4th हाउस में एरीज साइन है. एरीज साइन 4th हाउस घर का होता है, और एरीज इज अ मिनिमलिस्टिक साइन. तो मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ आपका घर होगा, कम से कम उसमें चीज़ें होंगी मिनिमलिस्टिक. ऐसे बहुत सारी स्पेस होगी घर के अंदर क्योंकि चीज़ें ही कम होगी. सो इट्स गोना बी लाइक दिस. सो एक सिंपल लाइफ आप जीना चाहेंगे और खुश रहेंगे उस सिंपल लाइफ में इनफैक्ट. और ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे आपके जीवन में. जैसा मैंने कहा, यू विल नॉट हैव फ्रेंड्स. All right, you may have a lot of people who you know they are your acquaintances, but you'll have maybe no friends, or maybe ज़्यादा से ज़्यादा एक दोस्त, और वो एक दोस्त भी आपका लाइफ पार्टनर ही है. इट विल बी लाइक दिस. तो स्पेस बहुत होगा आपके जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में. तो आप जैसे चाहें अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे. यू विल बी स्पेंडिंग टाइम इन योर हॉबीज. आई सी यू विल गेट हैप्पी विद दैट. क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं 2 years फ्रॉम नाउ. क्योंकि आप अपनी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है जब बहुत सारे लोग के साथ होते हैं. यू डोंट गेन एनर्जी, यू लूज एनर्जी व्हेन यू आर विद लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज समहाउ यू स्टार्ट टू डू पीपल प्लीजिंग. आपका ये नेचर है कहीं ना कहीं, एंड दैट्स व्हाई यू आर लाइक आई एम ओके विद नॉट हैविंग लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी. सो ये चीज़ है. सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल नंबर 2. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जैसे साइन ऑफ लियो, एरीज, एक्वेरियस, साइन ऑफ फाइसीज, सेजिटेरियस, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. सेजिटेरियस में मूला, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़. पाइसीज में, एक्वेरियस में भी हैव धनिष्ठा, शतभिषा एंड पूर्व भाद्रपदा स्पेल करता. पाइसीज में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. इवन लीब्रा में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. लीब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंस, यिंग एंड यांग वाली एनर्जी. तो लीब्रा में भी आप चित्रा, स्वाति, विशाखा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारक, कोई ना कोई प्लांट प्लेस्ड होगा. मरकरी, जुपिटर या फिर वीनस, इनमें से एक प्लैनेट जो है आपका आत्मा कारक प्लांट होगा. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज सिग्निफाइंग यू. सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल नंबर 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do a sort of reading, nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to our website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, is a handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 2. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the moon card here, or you picked this pile because आपका नाम BFHKNQUX से शुरू होता है. So let's get started with your reading. Your life 2 years from now. What kind of things you're involved in? What are you doing 2 years from now? कैसा जीवन आप जी रहे हैं? Pile number 3, 2 years from now. Okay, we have the devil. Oh my God. Okay, all right. Okay, pile number 3, you really need to be a bit optimistic. All right, I feel that
यू गाइज आर थिंकिंग कि पता नहीं हम 2 years फ्रॉम नाउ जिंदा भी रहेंगे या नहीं, या पता नहीं हमारा क्या बनेगा क्या नहीं. लाइक यू गाइज सीम अ लिटिल पेसिमिस्टिक. ऑलराइट, आप कहें कि अभी जीने के लाले पड़े हुए हैं, अभी 2 साल बाद क्या होगा इसका क्या ही सोचे, अभी कल का ही पता नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. सो यू गाइज आर लाइक दिस, बट हे, you need to have a vision. You really need to manifest what kind of life you want. All right, you need to visualize it. I hope this reading helps you in visualizing your life. So जो आपकी एनर्जीज है, आपका सबकॉन्शियस भी कई चीज़ें सोचता है. जो आपको लगता है ना मैंने नहीं सोची चीज़ें, आपका सबकॉन्शियस वो ऑलरेडी सोच चुका होता है, वो बाद में आपको पता लगेगा. सो द डेविल एनर्जी हेयर शोज मी दैट 2 years फ्रॉम नाउ यू आर गोना बी इन अ फॉरेन लैंड, बिकॉज ये राहु एलिमेंट है. तो आप किसी फॉरेन कंट्री में होंगे या एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाएंगे, जहाँ अगेन इट कैन बी लाइक इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री. इफ यू आर लिविंग इन इंडिया देन ऐसा होगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाएंगे, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं. इफ यू आर समवन जो ऑलरेडी फॉरेन लैंड में है, तो आपके लिए भी ये प्रिडिक्शन आ रही है कि आप जहाँ पर रहते हैं उस स्टेट को छोड़ एक दूसरी स्टेट में चले जाएंगे, या दूसरे प्रोविंस में चले जाएंगे, या हो सकता है एक दूसरी ही कंट्री में चले जाएं. ऐसा चेंज ऑफ प्लेस मेरे को फर्स्ट नजर आ रहा है. ऑलराइट, एंड यू आर सराउंडेड विद फॉरेन पीपल. आई सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी कल्चर, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स दैट ओनली. ऑलराइट, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट लाइफ स्टाइल जीने वाले, जिनका खाना पीना भी हमसे अलग है. इंडिया डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाओ तो लैंग्वेज, वेदर, लोगों का खाना पीना, बिलीफ सिस्टम, ये सब बदला हुआ ही हमें नज़र आता है ना. तो ऐसे ही आप कहीं फॉरेन लैंड में भी जाएंगे, वहाँ पर बहुत चीज़ें डिफरेंट आप देखेंगे, कल्चर डिफरेंट देखेंगे, है ना. ऐसा यहाँ पर होगा. द डेविल ऑल्सो हेयर शोज मी कि आपके कुछ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं कि मैं ऐसा करूँगा और ऐसा नहीं करूँगा, ये मैं कर ही नहीं सकता. कुछ ऐसे आपकी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके पाइल नंबर 3, है ना. तो उनको आप ब्रेक करेंगे 2 years फ्रॉम नाउ. जो आपके लिमिटिंग थॉट्स थे, रिस्ट्रिक्ट आपने अपने आप को किया हुआ था किन्हीं चीज़ों में, उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ेंगे. आपने ही अपने आप को किन्हीं जंजीरों में बांधा हुआ था, उसको आप तोड़ेंगे. Alright, with the 5 of Wands, I do see that there will be competitions in your life, hurdles in your life. ऐसा नहीं है कि जीवन बहुत सरल है 2 years from now. जीवन एक संघर्ष है. तो 2 years फ्रॉम नाउ भी कहीं ना कहीं आपके किन्हीं लोगों से नहीं बनती है, और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स आपके उनके आपके दोनों के से चलते रहते हैं. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. वी ऑल्सो हैव 7 of Cups, जो कि शो करता है कि 2 years फ्रॉम नाउ यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और लॉट ऑफ पाथ्स, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच आर गोना ओपन फॉर यू. ऑलराइट, आप फॉरेन लैंड जाता है, एक फॉरेन प्लेस जाता है. अगेन मून आपने कार्ड चाहे पिक करा है, चाहे इस पाइल को आपने अपने नाम से सिलेक्ट करा है, बट मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ट्रैवल. तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो करेंगे 2 years फ्रॉम नाउ, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी. बहुत बड़ा बदलाव आएगा जीवन में 2 years फ्रॉम नाउ, क्योंकि मून इज ऑल अबाउट चेंजेस. समटाइम इट्स वैक्सिंग मून, समटाइम इट्स वेनिंग मून, समटाइम इट्स नो मून, समटाइम इट्स अ न्यू मून, व्हाटएवर. लाइक इट्स ऑल अबाउट चेंजेस. ऑलराइट, सो इट डज शोज कि चेंज ऑफ प्लेस ऑफ लिविंग, चेंज ज़रूर होगा आपके जीवन में. आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर बहुत बदलेगा. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होगी, और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर ओपन होंगे कि येस आई कैन डू दिस, आई कैन इवन डू दैट. आप अपने कंफर्ट जोन से तो बहुत बाहर हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. सम ऑफ यू में इवन गेट स्टेट गवर्नमेंट जॉब या ट्रांसफरेबल जॉब आपको मिलेगी गवर्नमेंट में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है 2 years फ्रॉम नाउ. ऑल राइट, many of you are becoming psychics, many of you are becoming astrologer, or especially tarot card reader. I'm seeing this for you because you are dealing with energies. Moon represents energy, moon represents emotions, thoughts. तो आप उनसे दूसरों के इमोशंस थॉट से डील करें. मैनी ऑफ यू आर बिकमिंग रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर आप बनते हुए नजर आ रहे हैं. बिकॉज डेविल एलिमेंट राहु एलिमेंट है, तो राहु फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करे. तो मैनी ऑफ यू आर गोइंग इनटू बायोटेक्नोलॉजी, मैनी ऑफ यू आर मेकिंग न्यू मेडिसिन्स. बायोटेक में आप चले जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आप चले जाते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड आप कोई काम करेंगे, वैक्सीन्स डिस्कवर करेंगे, है ना. तो मैनी ऑफ यू आर बिकमिंग रिसर्चर्स है.
ऑल राइट, राहु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स टेक्नोलॉजी, तो आप बड़े आईटी फील्ड में, आईटी फर्म में काम करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। 7th हाउस है, 7th हाउस रिप्रेजेंट्स प्रमोशंस। 2 years फ्रॉम नाउ आपको एक बहुत बढ़िया प्रमोशन मिलता है, एंड समहाउ उस प्रमोशन से आपको बेटर जॉब, बेटर पोजिशन, बेटर पेचेक के साथ साथ चेंज ऑफ प्लेस भी होगा, ऐसा चीज़ भी होगा। 7th हाउस मैरिज का होता है, सो 2 years फ्रॉम नाउ you guys will actually get married. In the next 2 years you may meet someone, if you're single, you are ready to mingle, you guys will meet someone in the next 2 years, and especially आप अपने वर्क प्लेस पर मिलो, आफ्टर ट्रैवलिंग टू अ फार अवे प्लेस जाकर आप इस इंसान से मिलोगे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, and you guys are going to become friends first. All right, first you guys may feel like that we are very different from each other, हमारे thought processes बहुत different है, एक दूसरे के प्रति compete करो, this can happen, enemies to lovers वाली situation यहाँ पर होगी। First you guys may hate each other, you guys can be the people who are going to compete with each other। दोनों मतलब एक अगर quick street smart, quick learner, intelligent है, witty है, तो दूसरा wise है। Wisdom and intelligence are two different things, one is saying the glass is half full, the other is saying the glass is half empty, both are saying the same thing but in a different way। तो एक दूसरे के ऐसे compete करोगे आप against each other, है ना, ऐसे यहाँ नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों को एक दूसरे की इतनी आदत हो जाती है, एंड यू गाइज जस्ट फॉल इन लव विद ईच अदर, बिकॉज यू गाइज विल रियलाइज कि एंड ऑफ द डे पर हम ही दोनों एक दूसरे के एक साथ हैं। तो इस साथ को आप बहुत महत्व देना शुरू करेंगे, एंड इवेंचुअली यू गाइज विल गेट मैरिड एंड विल मेक योर सेल्फ, एंड यू बोथ ऑफ यू विल इनकरेज ईच अदर टू डू बेटर इन लाइफ, विल बी ओपन टू रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन आवर मिस्टेक्स, है ना, तो विल बिकम बेटर पर्सन टुगेदर। सो अगर आप में कोई कमी है, आपके पार्टनर वो आपको कमी बताते हैं और आप उस कमी को ठीक कर लेते हैं, और उसी तरह आपके स्पाउस में अगर कोई कमी है तो वो आप उनको बताते हैं, दे विल बी रेडी टू लुक इनटू कि मुझ में क्या गलती है, और उसको वो इम्प्रूव कर लेंगे। तो मैरिज आपको आपका एक इम्प्रूव्ड वर्जन बनाता है, मैरिज आपको एक इम्प्रूव्ड पर्सन बनाता है। मैरिज इसीलिए एक वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मैरिज इज कि हम एक दूसरे को इम्प्रूव करते चले जाएं। ऑलराइट, सो हालांकि आज की डेट में लोग ईगो के कारण, अगेन ये डेविल एलिमेंट ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, अपनी खुद की ईगो के कारण ना, अब अगर खुद की गलती भी होगी मानेंगे नहीं, वो ईगो इतना होगा, कहेंगे कि हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, तुम हमें मत बताओ कि हमें क्या गलती है क्या नहीं है, अपने काम से काम रखो। तो वो एक थोड़ा एक नेगेटिव ट्रेड आ गया ये, कि लोग आजकल ऐसा फील करने लगे, इतना ईगो मतलब हो गया। बट व्हाट आई सी इज कि अर्ली इन लाइफ, व्हेन यू आर गोना मीट दिस पर्सन, देयर कैन बी ईगो बैटल्स बिटवीन यू टू फॉर श्योर, बट आई ऑल्सो सी देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, क्योंकि डेविल एनर्जी अट्रैक्शन का भी एलिमेंट है। तो एक ऐसा है कि छोड़े नहीं छूटेगा ये इंसान, आप दोनों ही कहीं ना कहीं फेवी क्विक से जुड़े हुए हो, जो जोड़ टूटे ही ना, मतलब इस तरीके से। जैसे वी सी दैट दिस पर्सन इज अनेबल टू लेट गो ऑफ दीज चेन्स, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए हो, कहीं ना कहीं दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से बंधी हुई है। अगर आप बीमार हैं तो ये पर्सन भी बीमार फील करते हैं, है ना, तो चाहे आप एक दूसरे से कितना भी दूर हो, कहीं ना कहीं डेस्टिनी दोनों की बहुत सिमिलर है। हस्बैंड वाइफ के चार्ट बहुत मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, तभी वो हस्बैंड वाइफ भी बनते हैं। सो और ऐसा होता भी है मैरिज में कि अगर वाइफ कहती है कि मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं है, कुछ देर बाद हस्बैंड भी कहता है हाँ हाँ मेरी भी कुछ ऐसी हालत ठीक नहीं है, ख़राब है, नॉट दे स्टार्ट टू डू दिस। तो दिस इज़ ट्रू। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है 2 years में, नेक्स्ट 2 years में, एंड इवेंचुअली विल गेट मैरिड 2 years फ्रॉम नाउ। ऑल राइट, एंड कई चीज़ सिमिलर भी होगी आप दोनों की, मतलब हॉबीज़, लाइक्स, डिसलाइक्स सिमिलर भी होंगे, ये भी दिखता है। ऑल राइट, एंड दोनों को ही घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, खाने पीने का बहुत शौक होगा, क्योंकि मून खाने पीने को भी, ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगेन आपका आत्मा कारक प्लानट, पाइल नंबर 3, आत्मा कारक प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, वो मून हो सकता है, मून असेंडेंट में हो गया, जुपिटर मून का कंजंक्शन होगा, जुपिटर मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि यही शो करता है कि यू आर गोना ट्रैवल अ लॉट इन योर लाइफ एंड यू डील विद एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस। इफ यू आर हैप्पी, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, इफ यू आर सैड, यू आर एक्सट्रीमली सैड। ये कहीं ना कहीं नेचर में आता है आपकी। और मदर विल बी वेरी रिलीजियस, स्पिरिचुअल इन नेचर। You may meet your spiritual guru in life through your mother or through some
मदरली फिगर, और आफ्टर ट्रैवलिंग टू अ प्लेस जहाँ पर वाटर बॉडी है वहाँ पर आप अपने स्पिरिचुअल गुरु मेंटोर से मिलो, दिस कैन हैपन. आप इस पर्सन से भी तब मिल सकते हो जब आप किसी वाटर बॉडी के पास हो, दिस कैन हैपन. इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो यू गाइज इन द नेक्स्ट 2 years विल गेट मैरिड. इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, देन आई सी कि 2 years फ्रॉम नाउ यू गाइज आर गोना स्टार्ट टू डू योर ओन बिजनेस, मतलब एक साथ कोई बिजनेस करेंगे. वी हैव द 12th हाउस. लिटरली हम यही बात कर रहे थे कि फॉरेन लैंड्स आप जाएंगे, ट्रैवल होगा. 12th हाउस इज अबाउट फॉरेन लैंड्स, ट्रैवल. इट्स ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. तो आप दोनों इकट्ठे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करेंगे जीवन में. आफ्टर मैरिज दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इन नेचर बनने वाले हैं एंड विल डू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. ऑल राइट. और मैरिज में भी मतलब फ्रीडम आप फील करेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बंध गए हो, मैरिज में भी एक दूसरे को आप फ्रीडम देंगे. ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोना बी एन ओपन मैरिज. फ्रीडम इन द सेंस कि जो हम चाहें हम वो करें, जो हम खाना चाहते हैं वो हम खाएं ना, ऑल इस तरह की फ्रीडम की बात कर रहे हैं. सो जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस. सो ऐसा यहाँ पर है. फॉरेन लैंड्स में घर बनाएंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है 2 years फ्रॉम नाउ. कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिले आपके करियर के बारे में, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 का करियर 2 years फ्रॉम नाउ. सो वी हैव 5 of swords. 2 years फ्रॉम नाउ आई सी कि आप अपना कोई जॉब छोड़ेंगे जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से मे बी यू आर डूइंग सम जॉब एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स यू नो द सन एनर्जी. तो सन जो है इंडिविजुअलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, बीइंग द बॉस, बीइंग द CEO इसको रिप्रेजेंट करता है. तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि आप अपने स्पाउस के साथ एक बिजनेस करेंगे, खुद का काम करेंगे. तो 2 years फ्रॉम नाउ यू आर गोना डू सम बिजनेस विद योर स्पाउस. ऑल राइट. आप दोनों कहीं ना कहीं जॉब्स में होगे एंड यू गाइज विल रियलाइज दैट जॉब में हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही, हम वर्किंग आवर्स नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं खुद के, या रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं. तो some of you are going to become travel vloggers, will together vlog, will become influencers together. Again आप दोनों के चार्ट में Mercury Mars can be conjunct या Mercury Mars can be trine from each other, 5-9 places away from each other, जो कि ये शो करता है कि आप दूसरों को मोटिवेट बहुत ईजिली कर पाते हैं. आपके कम्युनिकेशन में बहुत पावर है, मोटिवेट कर पाते हैं आप दूसरे लोगों को. और ये यही शो करता है कि बात तो स्पेशली अगेन आपका राहु 3rd हाउस का या 3rd हाउस जेमिनाई में राहु हो, जेमिनी साइन में रहो, और आपके स्पाउस का भी चार्ट में कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन हो, है ना. तो यही शो करता है कि आप बड़ा मिर्च मसाले लगाकर बातों को बताते हैं, बड़ी चटपटी बातें करते हैं, तो लोगों को वो सुनने में मज़ा आता है. तो गाइज विल स्टार्ट योर ओन पॉडकास्ट, विल स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज एंड पीपल विल लव टू वॉच यू. खुद का कोई बिजनेस अगेन आप फिर बनाएंगे, करेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. दोनों को उसमें फिर फ्रीडम मिलती है टू ट्रैवल, टू बी विद ईच अदर, टू डू समथिंग, है ना, ऐसा फ्रीडम मिलती है. देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स. ये आपके फाइनेंसेस को लेकर आ रहा है. किंग ऑफ कप्स यहाँ पर शो करता है थ्राइव. यू आर थ्राइविंग इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस. मनी इज कमिंग टू यू गाइज वेरी इजीली. इट इज़ फ्री फ्लोइंग, इट्स कमिंग टू यू वेरी ईजिली, क्योंकि वाटर एलिमेंट है. हम कैश फ्लो, लिक्विड मनी कहते हैं पैसों को भी, है ना. तो एक वाटर एलिमेंट है, तो और वो भी किंग ऑफ कप्स है, तो वी नो कि लॉट ऑफ मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दैट मनी इज ईजी मनी. ईजिली मनी आ रहा है. ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और तब जाके वो पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है. ईजिली मनी आ रहा है. हाई प्रीस्टेस आपकी पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. पर्सनल लाइफ में यू काम, यू आर कंपोज्ड. ऐसा नहीं है कि यू नो अपनी ज़बान पर कोई कंट्रोल नहीं है. यू विल बी सीइंग इन योर सेल्फ 2 years फ्रॉम नाउ कि आपका अपने वर्ड्स पर, अपने कम्युनिकेशन पर कंट्रोल है. गुस्से में आप ऐसे ही नहीं चीज़ें कह देंगे, आप बहुत सोच समझ के चीज़ें कहेंगे, बोलेंगे. 2 years फ्रॉम नाउ अपनी कम्युनिकेशन पर आपका फुल कंट्रोल है. हाई प्रीस्टेस यही शो करता है कि आप रीड बिटवीन द लाइन्स कर पाते हैं कि दूसरा असल में क्या कहना चाहता है. कई बार शब्द जो है दूसरे को नहीं मिलते, पर इंटेंशंस ज़रूर पहुंच जाती है दूसरे की आप तक, तो आप समझते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, या ये बात ही क्यों ये कह रहा है. यू विल नो द इंटेंशन. यू आर गोना बिकम समवन जो रीड बिटवीन द लाइन्स कर सकते हैं. और कहीं ना कहीं एक इंट्यूटिव कनेक्शन आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ होगा. आप अंडरस्टैंड करेंगे अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ईजिली. ऑल राइट. तो आपको आपके स्पाउस से कह सकते हैं दैट यू आर अ साइकिक. पाइल नंबर 3, यू गाइज आर द साइकिक रीडर्स. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई एनर्जी, व्हाट आई वांट टू से एंड ऑल. तो एक इमोशनल, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका अपने लाइफ पार्टनर से डेफिनेटली होगा. एंड द फ्रेंड्स यू आर गोना हैव इन लाइफ, द पीपल यू आर गोना हैव इन योर लाइफ, पाइल नंबर 3, दीज पीपल आर गोना बी वेरी नरिशिंग, वेरी नर्चरिंग टूवर्ड्स यू. एंड सेम आप भी नरिशिंग और नर्चरिंग होंगे अपने फ्रेंड्स, अपने लव वंस
के प्रति, और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाकर रखेंगे, ये यहाँ नज़र आता है। लड़ने में बिल्कुल भी आप लोग विश्वास नहीं रखेंगे। ऑलराइट, तो बहुत पीसफुली आप चीज़ों से डील करेंगे। शुरू में हम ये बात कर रहे थे, मैनी ऑफ यू आर बिकमिंग टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, डीलिंग विद एनर्जी काइंड ऑफ वर्क से आप, एनर्जी काइंड ऑफ वर्क आपका है। वाटर से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, मतलब लिटरली यू आर इन अल्कोहल इंडस्ट्री, या फिर आप पेट्रोल पंप के बिजनेस में हैं, मतलब वाटर से, लिक्विड चीज़ों से आप मतलब डील करेंगे अपने करियर में, कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है। फूड बेवरेज से रिलेटेड काम कर सकते हैं, क्योंकि मून का यही वर्क होता है। मून का अगेन, मून इज़ अ प्लांट जो कि लॉजिस्टिक शिपिंग से रिलेटेड कामों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इससे रिलेटेड काम हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज अबाउट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर यही शो करता है कि यू आर गोना बी समवन जो जर्नलिंग बहुत करेगा 2 years फ्रॉम नाउ। क्रिएटिव चीज़ें, हाथों से जो हम काम करते हैं, जैसे पेंटिंग करा, जर्नलिंग करा, कुछ लिखा, कुछ क्रिएट करा हाथों से, पॉटरी करी, मतलब जो कप बनाना या वास बनाना है ना, तो वो, या फिर गार्डनिंग करा, इनमें आप बहुत इन्वॉल्व रहेंगे। तो पर्सनल एक्टिविटीज़ आप ये करेंगे, और जब आप ये काम करते हैं तो ये काम आपके मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता चला जाता है। जो आपके थॉट्स जो है, अगेन पाइल नंबर 3, यू गाइज आर द पीपल जिनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा चलता है, बुद्धि बल बहुत ज़्यादा। अगेन मरकरी बहुत अच्छा है आपके चार्ट में, ओवरली पावरफुल है। तो जब मरकरी ओवरली पावरफुल होता है तो इंसान का लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है, इंटेलिजेंट बहुत होता है ऐसा इंसान। मरकरी मतलब आपका वर्गो साइन में हो सकता है, 6th हाउस में हो सकता है। मरकरी मार्स का कंजंक्शन हो, मरकरी राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मरकरी राहु कैन बी कंजंक्ट टुगेदर, मरकरी मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मरकरी केतु कैन बी कंजंक्ट टुगेदर, मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि यही शो करता है कि मरकरी बहुत अच्छा है, मतलब लॉजिक आप में बहुत है, आपको समझ पूरी है। अगर कोई बात करेगा कोई पर्सन, तो आपको पता होगा कि इसकी बात एंड कैसे करेगी, या ये कहना क्या चाहता है, पहली लाइन से ही आप समझ जाएंगे, मतलब आपके अंदर इतना इंटेलिजेंस है। तो आप सोचते ही बहुत ज़्यादा, आपका स्पीड ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा है। जब स्पीड ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा होता है तो एक पर्सन को ADHD या एंजाइटी से भी डील करना पड़ जाता है। तो व्हाट आई सी विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी हियर, दैट यू आर एन ओवरली एक्साइटेड पर्सन। पाइल नंबर 3, एक्साइटमेंट आपको बहुत ज़्यादा होती है। कई बार एक्साइटमेंट की वजह से आप सो भी नहीं पाते हो। जैसे बच्चों को अगर कह देना कि अरे तुम्हारे कज़न आने वाले हैं कल, बहुत खेलोगे तुम उनके साथ, वो रात भर सोएंगे ही नहीं। उनको होगा कि भाई मेरे को तो खेलना है खेलना है खेलना है, कब आएगा मेरा कज़न, उसको कहो भी आ जाए। ऐसा होता है ना बच्चों में, तो यही एनर्जी आपके अंदर भी है पाइल नंबर 3। तो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आप इस एनर्जी को काम डाउन करना चाहेंगे। जो नेक्स्ट 2 years हैं आप इस पर एफर्ट करेंगे कि मैं ओवरली एक्साइटेड ना हूँ, मैं दूसरों के प्रभाव दबाव में ज़्यादा ना हूँ। तो आप जर्नलिंग करना, कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज़ आप करते रहेंगे। आप में बहुत एनर्जी है पाइल नंबर 3, पर आप सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं सोच विचार में भी निकल जाती है। प्रोक्रेस्टिनेट चीज़ों को बहुत करता है। जो काम 4 घंटे 5 घंटे बाद करना है, उसके बारे में अभी से ही सोच सोच के आप अपना पीस ऑफ माइंड खत्म कर लेते हैं, क्योंकि मरकरी ओवर स्टिमुलेटेड है। और मून स्कॉर्पियो का है, मून 8th हाउस का, मून राहु का कंजंक्शन, मून केतु का कंजंक्शन, मून राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मून केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, ऐसी प्लेसमेंट में होगा आपका मून। मून यानी मन है ना, तो मन की जो थॉट्स की जो स्पीड है वो आपकी एक्शन की स्पीड से मैच नहीं करती, और वो आपको चीज़ फिर एंजाइटी देती है, वो फिर आपको ADHD देती है। इवन मैनी ऑफ यू आर अनेबल टू ड्राइव अ कार, ड्राइव अ व्हीकल, क्योंकि आपका स्पीड ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा है, पर आप उतनी स्पीड से गाड़ी व्हीकल नहीं चला पाते, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है, और रोड रेज भी करते होगे। सो ये इसको आप काम डाउन करोगे इन द नेक्स्ट 2 years। आप इस पर एफर्ट करोगे कि मैं स्लो रहूँ, स्लो मेरे थॉट्स चलें। ऐसे नहीं कि 1 मिनट में 1 मिनट में 100,000 थॉट्स क्रिएट कर ले, मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। तो आप इस पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिजिकल हेल्थ इज़ गोना बी रियली वेल, मेंटल हेल्थ पे आप बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 years। एंड हाउ यू आर डूइंग दैट, बाय डूइंग सम क्रिएटिव वर्क्स, something more if we can get for pile number 3, life 2 years from now. So we have let love guide you, choose to see the good in the world today. तो आप ना 2 years from now हर पर्सन में, हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे, उसकी पॉजिटिव साइड ढूंढेंगे, और उसकी पॉजिटिविटी को नमन करेंगे। तो आई सी कि आप पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं 2 years from now. We have a time to remember card, look back on your childhood. So 2 years from now you will only have positive memories of your childhood. कहीं ना कहीं नेगेटिव मेमोरीज को आप दफना देते हैं। ऑलराइट, जो
अगेन चाइल्डहुड टफ रहा है आपका पाइल नंबर 3, आई डू सी दिस, क्योंकि मरकरी जब ख़राब होता है, जो मैंने प्लेसमेंट्स बताई मरकरी के, तो चाइल्डहुड भी ख़राब हो जाता है. चाइल्डहुड में यू वर नॉट अ चाइल्ड, यू वर एन अडल्ट. even though you were a child, but you were a mature child. What I see is ki in the future you're going to become a childlike adult, easygoing childlike adult आप बनेंगे 2 years from now, and you will let go of the negative things which happened in the past. That's why you're going to be you will thrive in the future. ये यहाँ नज़र आ रहा है. Then we have get lost card. It says fall deep into the realm of imagination. So you're going to be someone जो अगेन आप एक ऐसे इंसान तो है ही पाइल नंबर 3 जो कहीं ना कहीं फेक सिनेरियोज क्रिएट करता है अपने हेड में, और आपको बड़ा मज़ा आता है वो फेक सिनेरियोज को क्रिएट करके. तो यू आर अ डे ड्रीमर फॉर श्योर, डेफिनेटली आर अ डे ड्रीमर. सो प्लीज़ विजुअलाइज योर फ्यूचर. ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि आप कैसा फ्यूचर चाहते हैं, बट यू आर डेफिनेटली अ डे ड्रीमर काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, और डे ड्रीमिंग में लॉस्ट रहते हैं. देन वी आर स्पीक टू योर सेल्फ विद काइंडनेस, बिकम अवेयर ऑफ हाउ यू स्पीक टू योर सेल्फ. तो 2 years फ्रॉम नाउ यू आर गोना नोटिस कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा, क्योंकि आप जितना दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं उतना ही मीठा आप अपने साथ भी बोलेंगे, अपने साथ भी रहेंगे, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है. देन वी हैव द सक्यूलेंट. इट सेज रिजिलियंस. सक्यूलेंट्स आर द प्लांट्स जिनको आप पानी भी ना दो या बाहर भी ना रखो या धूप भी ना दो, फिर भी सक्यूलेंट्स थ्राइव. तो यू आर लाइक अ सक्यूलेंट पाइल नंबर 3, जिसको ज़्यादा पानी, हवा, धूप की ज़रूरत नहीं. आप हार्श एनवायरनमेंट में भी थ्राइव करोगे. 2 years फ्रॉम नाउ आप इतना रिजिलियंट हो जाते हो. एंड वी हैव मेडिकल स्टाफ. इट सेज हीलिंग. अगेन हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि आप हीलिंग से रिलेटेड प्रोफेशंस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं. वैक्सीन बनाएंगे, या आप एक रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर बनेंगे. आप कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोफेशंस में होंगे, या द स्पाउस यू गोना गेट वो एक हीलिंग प्रोफेशन में होंगे. एंड वी हैव द सनफ्लावर कार्ड. इट सेज एक्शन. आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे 2 years फ्रॉम नाउ. आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे चीज़ों को लेकर, एक्ट करने वालों में से होंगे. अपना सोच के पीस ऑफ माइंड खराब करने वालों में से आप नहीं होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है. देन वी हैव द अग्रीमेंट कार्ड, द स्ट्रॉबेरी कार्ड. विद द अग्रीमेंट कार्ड हेयर आई सी कि आप को ना एक समझ आती है कि ना अग्री कर लो लोगों से. बहस नहीं करनी चाहिए. बहस वो लोग करते हैं जिनमें बुद्धि की कमी होती है, जिसमें बुद्धि बल नहीं. बहस वो लोग करते हैं. आप हाँ सभी को कर दोगे, पर करोगे अपनी. सुनोगे सभी की, करोगे सिर्फ अपनी. आप दूसरों को जो है ये नहीं कहोगे कि अरे आपको मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, व्हाटएवर. लाइक यू आर नॉट गोना गो फॉर I would say validations from others कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ. नहीं, you will not go for validation. You will validate your own self. All right. आप जो है दूसरों की हाँ में हाँ मिला दोगे, बट करोगे वही जो आपको ठीक लगता है. यू आर गोना अग्री ऑन द एग्रीमेंट्स विच यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ. तो यू आर नॉट अ पीपल प्लीजर. देन वी हैव इंस्पिरेशन कार्ड. सीक इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी, लेट योर इमेजिनेशन सोर. तो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स. पाइल नंबर 3, 2 years फ्रॉम नाउ यू आर गोना इंस्पायर अदर पीपल. जैसे हम बात कर रहे थे कि आप कुछ हाथों से कुछ करोगे. अगेन यू आर पेंटिंग, यू आर गोना डू समथिंग, और स्किल्स ऑफ हैंड्स का आप यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना. तो खुद कुछ क्रिएट करेंगे, है ना. तो कुछ आप दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे और खुद भी इंस्पायर्ड रहेंगे. देन वी हैव डिटर्मिनेशन. अभी हम ये भी बात कर रहे थे दैट यू मे वर्क इन अ लैब. यू विल बी डूइंग समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री. आप कुछ लैब में काम करेंगे, और यहाँ पर भी दिस पर्सन इज वर्किंग इन अ लैब. इट सेज डिटर्मिनेशन. स्टे डिटर्मिनेटेड एंड फोकस्ड एंड योर एफर्ट्स विल पे ऑफ. तो यू आर गोना बी दैट पर्सन. अगर आप कर लेते हैं ना कमिट किसी चीज़ से, तो उस कमिटमेंट को आप निभाते रहेंगे, और जो आपने काम कर रहे हैं उसमें बहुत डिटरमाइंड होके मतलब लगे रहेंगे. कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा 2 years फ्रॉम नाउ. और सारे जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 years वो पे ऑफ ज़रूर करेंगे 2 years फ्रॉम नाउ. सो बहुत फोकस, बहुत डिटरमाइंड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. सो याद वाज प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल नंबर 3. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, इनमें से कोई प्लांट आपका आत्मा कारक प्लांट होगा. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज सिग्निफाइंग यू. एंड आई सी के जैसे साइन ऑफ टॉरस, साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, साइन ऑफ वर्गो, स्कॉर्पियो, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो
टॉरस भी अगेन प्रोमिनेंट है, तो टॉरस में भी आप कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पेल करता है, जेमिनी में आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, फिर विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा स्कॉर्पियो में होता है, एंड अगेन दी साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसमें प्लांट्स प्लेस होंगे उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। ऑलराइट, सो दैट वाज प्रीटी मच इट। दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.